So, good morning, friends. Welcome to Equity Question Price Action Trading. I am Suhas Futwala. So, let me give 5 minutes to brief about myself, not too much long discussion. I am Suhas Futwala in equity market since 2005 2006. I was working as a medical representative in well-reputed pharma company like McLeod's, then IPCA, promoted as a area manager, then switched to regional sales manager. I work in well-reputed pharma company like IPCA, McLeod's, Piramal, Abbott. My last assignment was overseas healthcare as a regional manager. I was covering whole Gujarat. And since 2005, 2006, I have started taking interest in the equity market. But at that time, I was an investor. I don't know much about price of the stock. I know only fundamental about the stocks. But what happens, sir? Sometimes मैं प्राइस के ऊपर बाय करता था तो महंगा बाय कर लेता था सर. हर बार सस्ता बाय नहीं होता था सर. So I am not rewarded much according to my expectation. So then I deep into the price action, support or resistance सीखा, Dow theory सीखा, then gradually switch to technical analysis more than fundamental. कि fundamental I have already digested in so many years कि कौन सी अच्छी कंपनियां हैं. Now it's time to pick the stock at right levels, right? Like example of I have picked Ashok Leyland at 12 rupees. There are so many good examples in the market which give me a good rewards. Torrent Pharma also I pick a very low rate. When Jio was not coming, I was very optimistic according to fundamental of Reliance. I invested Reliance like anything, which make my money double. So before 3.5 years, I have left the job completely, and I completely dedicated to this equity market in terms of trader, investor, and my passion is to mentoring the people. I am doing live intraday trading with my students, mentoring them, teaching them, training them for a right trade so that they can be in a profit. Right, sir? I am official sub-broker of Motilal also, so I am associated with the Demat account opening also and portfolio management also. Okay, this is a brief about myself. My passion become my profession. Directly or indirectly, something is happening in my life. So 3.5 years, I am completely dedicated to my passion, which is now profession. Okay, so I am starting with Nifty, which is a passion for me. To deal with the Nifty whole day, I used to track Nifty whole day, like anything. If you ask me on a midnight, what is the situation of the Nifty, I can definitely imagine in my eyes, right? So this thing can be happen with anyone. It can be yours also. Someone is taking Maruti, it's good. So nothing is mandatory in market, sir. You can rely on one stock whole lifetime if you are familiar with all the things of technical and the structure of that stock, right? तो जरूरी नहीं है सर कि बहुत सारे स्टॉक ट्रैक करें. कम स्टॉक होंगे, क्वालिटी मिलेगी और फिर एप्रिसिएशन में क्वांटिटी मिलेगी सर. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड फोकस्ड अप्रोच. Okay, and I used to track Nifty like anything. So as of now, you can see the chart of Nifty, right? It was following a rising wedge, which is a bullish pattern. It has given a breakout also, but you can see again on second day gap down again inside the channel, inside the rising wedge, again came out, again trying to come inside by gap up. तो अभी मुझे समझ में आ रहा है, मुझे जो दिख रहा है सर, जो राइजिंग वेज है उसका जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, दे आर वर्किंग स्टिल आउटसाइड आल्सो सर. पहले सर वो रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट की तरह काम किया. अभी जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है. As of now, what I am feeling, market is not good for positional trading, sir. You can go for stock specific. But as far as Nifty and Bank Nifty is concerned, I am not looking for good positive momentum in the market. Because one day market opening 200 point gap up. Second day it is opening 200 point gap down. And I don't think किसी का 200 point या 300 point का stop loss होगा in current range bound markets. And you can see this is a completely indiscipline in the market. अगर मैं समझ लूँ तो ये rising wave जो है ना, it was also formed by buy force. कुछ पैटर्न तो फॉलो करेगी तो ये राइजिंग वेज. अदरवाइज आई एम स्टिल नॉट ऑप्टिमिस्टिक विद राइजिंग वेज आल्सो.
but sir, it's a so much volatile in the market with gap up and gap down. So for me and for I think Intel is the best momentum as of now. If you are an intraday player, just focus like anything. If you are a positional trader, stay away as of now, or do trade in option to it can minimize your risk, right? So this is from my side. ओके अभी सर मैं डेली के ऊपर देख रहा हूँ तो राइजिंग वेज जैसा लग रहा है, बट स्टिल आई एम नॉट कन्विंस विद द पैटर्न बिकॉज एक बार ब्रेकआउट हुआ अभी ब्रेक डाउन हुआ, बट स्टिल डायरेक्शन ऑफ द मार्केट इज नॉट क्लियर. सर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव होते हैं तो गैप अप खुलता है, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव होते हैं तो गैप डाउन खुलता है. एज ऑफ नाउ यही हो रहा है सर, इंडिया का कुछ अपना सेंटिमेंट नहीं है. एंड दिस अ होल पीक यू कैन सी इट्स लाइक अ कोरोना सेंटिमेंट, जिग जैक. ओके बट सर अगर मैं वीकली चार्ट ओपन करता हूँ ना सर तो मुझे ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है. तो लेट्स गेट बैक टू द वीकली चार्ट. तो वीकली चार्ट के ऊपर एक कंप्लीटली डाउनफॉल जा रहा है सर. जनरली इसको हम इन्वर्टेड पोलन फ्लैग बोलते हैं सर, बट इन्वर्टेड पोलन फ्लैग कैरिंग बिग रेड कैंडल, बट हियर रिट्रेसमेंट भी अच्छा हो रहा है सर, बट स्टिल आई वुड लाइक टू कंसीडर इट एज अ इन्वर्टेड पोलन फ्लैग, राइट. And now it is making flag, वो भी बहुत बड़ा बन रहा है सर, which is not practically happening. तो ये पोलन फ्लैग है which is like ascending channel, है ना. अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट सेशन अटेंड किया होगा तो I already told I am looking for this पोलन फ्लैग और ब्रेकडाउन देखना है मुझे, बट ब्रेकडाउन भी सर सही नहीं हो रहा सर. देख लीजिए सर ये ऑलमोस्ट 30-40% तो रिट्रेस कर गया लास्ट वीक में. So I am only looking for bear side positional also below 9100. 9100 strong लक्ष्मण रेखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल है टू ट्रेड अगेन फॉर अ बेयर साइड. अदरवाइज जब तक 9100 के ऊपर है आई एम लुकिंग फॉर अ बुल साइड इन द मार्केट. एंड मार्केट इज यू कैन सी सिंस लास्ट 4 week or 1 month it is going down going up, going down going up, going down going up. So market is looking for some hope of optimism of the any relief package from government, but I don't think so. Relief package आएगा सर तो भी वो थोड़ा बहुत sentiment positive रहेगा, it will not bear market into the bull market. तो अगर समझ लो सर ये 9100 के नीचे गया तो this is a inverted pollen flag which is a continuation pattern जो आगे नीचे की साइड निफ्टी को ले जाएगी सर. And then next milestone would be 7500, which is a multi-year low which we have faced 1.5 months back, sir. तो 7500 के नीचे गया, then I am looking for more pain in the market now. So what is leading as of now in the market? Big तीन चीजें, 3 musketeers are in the market जो मार्केट को ज्यादा लीड करती है, डायरेक्शन देती है. Number 1 as of now this is a HDFC Bank, right. तो उसका डेली चार्ट देखेंगे तो वो भी as good as निफ्टी की तरह परफॉर्म कर रहा है. मींस इट इज नॉट आउट परफॉर्मिंग और अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी. वो HDFC बैंक निफ्टी की तरह ही काम कर रहा है. दूसरा है HDFC, वो भी हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट निफ्टी की तरह काम कर रहा है, और वो ये पैटर्न जो बना रहा है उसका नाम है बेरिश हरामी पैटर्न, विच इज अ बेरिश पैटर्न. तो वो भी नेगेटिव सेंटीमेंट है. बट अभी अगर मार्केट को कोई बचा रहा है तो वो एक ही बंदा है, दैट इज रिलायंस. एंड आई एम लुकिंग फॉर न्यू ATH. अकॉर्डिंग यू कैन सी दिस अ वीकली टाइम फ्रेम. अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जा रहा हूं तो राउंड बॉटम कंप्लीशन हो रहा है सर. डबल टॉप इज ऑलवेज बेरिश पैटर्न सर. तो आप देखिए डबल टॉप ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप बना के रिलायंस गिरा, नाउ इट इज गोइंग लाइक एनीथिंग और अपसाइड. तो अभी अगर रिलायंस का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है तो 1600 है सर. वहां से इट कैन स्टार्ट रिट्रेसिंग टुवर्ड्स डाउनसाइड और वो निफ्टी को भी ट्रैक कर रहा है. मींस अभी जो भी मूव है ना मार्केट की वो ऑल डेडिकेटेड टू एक्सेप्ट रिलायंस. रिलायंस ही मार्केट को ऊपर खींच रहा है. बाकी की पूरी जो है ना निफ्टी में मेजर स्टॉक TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI, वो सब डाउनसाइड ज्यादा है सर. तो अभी सिर्फ निफ्टी कैन फॉल लाइक एनीथिंग, बट सिर्फ रिलायंस उसको बचा रहा है विद दिस पॉजिटिव मोमेंटम. अभी भी मैं रिलायंस में कोई वीकनेस नहीं दिख रहा अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस एक्शन.
मुझे 1600 का टारगेट लग रहा है, देन इट कैन चेंज इस डायरेक्शन, ऊपर भी जा सकता है, नीचे जा सकता है. बट एज ऑफ नाउ आई एम लुकिंग फॉर स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट कंटिन्यू इन द रिलायंस. अनदर थिंग, जब भी सर मार्केट गिरता है ना सर, मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक गिरते हैं, बट एक स्टॉक सेक्टर वो जनरली आउट परफॉर्म करता है इन इंडियन मार्केट. हाँ सर, दिस इज निफ्टी एफएमसीजी. एफएमसीजी स्टॉक में देखेंगे तो इट इज, देखो रेड हैमर बनाया, लिटिल बिट बायर्स आर देयर. अभी बना रहा है ड्रैगन फ्लाई. मीन्स ड्रैगन फ्लाई मीन्स ये स्टॉक को उड़ा सकता है सर. तो अभी मुझे निफ्टी एफएमसीजी फॉर नेक्स्ट वीक के लिए बुलिश लग रहा है. एंड उसमें मेरी अच्छी वाली पीक है विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ ऑल माय ऑलरेडी. सर मैंने 200 के आसपास रिकमेंड किया था और कल ही सर उसने अप्रिसिएशन दे दिया है. तो आई एम लुकिंग वेरी बुल सेंटिमेंट इन हिंदुस्तान यूनिलीवर. Another is Dabur. I am looking for good pullback in all this. Colpal, I am looking for good pullback in all this. ये देखिए Colgate Palmolive. अगर जिनको कैंडलस्टिक पता है उनको पता होगा ये कौन सी पैटर्न है. कैन एनीवन से ये पैटर्न का नाम क्या है? बुलिश पैटर्न है सर, बुलिश रिवर्सल पैटर्न. कोई बताएगा सर? There are all so many people, एक्सपीरियंस भी है. You can unmute self और इसका नाम बताएंगे सर मुझे, इस पैटर्न का नाम क्या है? I have unmuted all. इस पैटर्न का नाम क्या है सर, कोई बताएगा? Okay, one horse candle morning star. नहीं सर, मॉर्निंग स्टार. नहीं मॉर्निंग स्टार में I am muting again all. कोई बात करना है अनम्यूट करे, बहुत आवाज आ रही है सर. सर मॉर्निंग स्टार में जनरली बीच में इंडिसिसिव कैंडल होती है, like dragon, like spinning top or doji. No sir, this is the one white the bullish pattern जहां स्टॉक ऑलरेडी गैप अप होता है और प्रीवियस डे के ऊपर क्लोज देता है. दिस इज अ बुलिश पैटर्न. कॉलगेट पामोलिव में जो मुझे अभी बुलिश फिल किक. नो, इसका नाम है वन वाइट सोल्जर. वन वाइट सोल्जर. पहले ब्लैक और व्हाइट कैंडल्स हुआ करती थी, इसलिए व्हाइट और ब्लैक नाम है. इसका उल्टा होता है, उसको बोलते हैं वन ब्लैक क्रो. इसका नाम है वन वाइट सोल्जर, जिसमें स्टॉक गैप अप ओपनिंग होता है और प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है. सो आई एम लुकिंग वेरी बुलिश फॉर ऑल एफएमसीजी स्टॉक विद सच अ टाइप ऑफ प्राइस एक्शन. एंड कोलगेट पामोलिव मुझे ज्यादा बुलिश लग रहा है. हिंदुस्तान यूनिलीवर मुझे अच्छा बुलिश लग रहा है. Another is Nestle, which is already trending at 52-week high. वो भी मुझे bullish लग रहा है. तो whole FMCG sector I am looking as a bullish for a next week. Right sir? कोई confusion sir? अभी तक? हाँ? You can ask me, हाँ? Ask me anything. अभी तक कुछ भी डिस्कस हुआ उसमें कुछ कंफ्यूजन हो, यू कैन डिस्कस विद मी. बट कॉलगेट पामोलिव में जो पैटर्न बनी थी उसका नाम है वन वाइट सोल्जर विच इज अ बुलिश पैटर्न. देयर आर ऑलमोस्ट 12 पैटर्न्स. 6 बुलिश है, 6 बेरिश है. अगर आपको प्राइस एक्शन सही तरह से समझना है ना सर, तो पहले वो क्लियर करना है. दे आर लाइक अल्फाबेट्स. कभी कोई स्पेलिंग अल्फाबेट्स और वोवेल्स के कॉम्बिनेशन के बगैर नहीं बनता सर. तो ये जो है ना, दे आर अल्फाबेट्स एंड वोवेल्स. AIOU जो वोवेल्स है, दे आर लाइक इंडिसिसिव कैंडल्स. ड्रैगन फ्लाई, स्पिनिंग टॉप, डोजी, हैमर्स, दे आर वोवेल्स. और जो ये बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल है ना, दे आर लाइक अल्फाबेट्स. उनके कॉम्बिनेशन से पैटर्न बनती है. तो देयर आर ऑलमोस्ट 12 पैटर्न्स. 6 बेरिश है, 6 बुलिश है. बुलिश में और बेरिश में सर रिवर्सल के ही सब पैटर्न है. लाइक मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ड्रैगन, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार है सर. स्पिनिंग tweezer top, tweezer bottom, one white soldier, one black crow, bullish harami, bearish harami, bullish engulfing, bearish engulfing. You can Google it. You can find good material already on the websites. और अगर आप मुझे पिंग करेंगे मैं भी आपको दे दूंगा. I am already carrying all this thing, right? तो आप भी बोलेंगे मैं आपको दे सकता हूँ. It's a very simple to understand the things through the price action. Okay, सर आप पूछ रहे कैन वी अलाउ रिकॉर्ड सेशन. सर आई एम ऑलरेडी डूइंग रिकॉर्डिंग. मैं पोस्ट करूंगा आपको यूट्यूब पे डाल के, आप लोगों को सबको दे दूंगा. आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि मैंने परमिशन नहीं दी. आई एम ऑलरेडी रिकॉर्डिंग.
और आप सबको दे दूंगा। ओके, एनी अदर क्वेरी फ्रॉम एनीवन? कुछ है, कुछ डिस्कस करना है अभी तक? सो आई कैन मूव अहेड फॉर अदर एस्पेक्ट ऑफ द सेशन। देखिए बैंक निफ्टी भी सो देखो सर, इट इज वर्किंग लाइक अ राइजिंग वेज, बट वो ज्यादा डिसिप्लिन लग रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी मुझे। एटलीस्ट वो चैनल के अंदर सस्टेन कर रहा है, वो डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है। तो अगर आपको अभी में सच में काम करना हो फॉर पोजिशनल ऑल्सो, तो आई एम लुकिंग गुड इन बैंक निफ्टी सर। अगर बैंक निफ्टी में ब्रेक डाउन हुआ तो आई एम लुकिंग अ गुड डाउन साइड, बट टुमारो आई एम लुकिंग फॉर बुल सेंटीमेंट इन आईसीआईसीआई, क्योंकि रिजल्ट उसका अच्छा आया है सर, बट नथिंग इज मैंडेटरी इन द मार्केट है सर। आईसीआईसीआई बैंक तो ये थोड़ा मार्केट को पुल बैक कर सकता है, और इट्स अ गुड निफ्टी कंट्रीब्यूटर आल्सो, बैंक निफ्टी कंट्रीब्यूटर आल्सो। So I am looking for good positive pullback in ICICI on a result base, right? Otherwise I am not suggesting to trade on result में charts बोलेगा तो buy करना है, otherwise नहीं करना है। और सर आप टाइप मत करिए सर, आप मुझे फेस टू फेस पूछ सकते हैं, सो दैट आप सभी को आंसर क्वेश्चन समझ में आएगा सर। आप टाइप करेंगे मैं समझ नहीं पाऊंगा कि क्या आप पूछ रहे हैं सर विद द सेंटिमेंट्स। ओके, तो बैंक निफ्टी इज क्लियर। नाउ आई एम लुकिंग फॉर यूएसडी आईएनआर। सर कभी भी सर इंडियन मार्केट में डील करना है ना, यूएसडी आईएनआर को पहले देखना है। इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम इनवर्स देन निफ्टी। सर निफ्टी ऊपर जाता है तो यूएसडी निफ्टी और यूएसडी ऑलमोस्ट इनवर्स होता है सर। अभी देखो निफ्टी नीचे की साइड जा रहा है तो यूएसडी आईएनआर ऊपर की साइड जा रहा है सर, but still I am not looking good discipline as far as technical is concerned. Again either gap up, gap down, gap up, gap down हो रहा है सर। Again USD I am looking good trade for intraday also. मुझे क्या लग रहा है सर, this is a bullish pattern like a dragonfly तो कंफर्म नहीं बोल सकते, but is a holy cross doji बोलते हैं सर इसको, which is having a good bull sentiment सर। तो मुझे अभी यूएसडी आईएनआर ऑन चार्ट स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर यूएसडी आईएनआर स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा मार्केट इनडायरेक्टली वीक हो सकता है। दिस इज व्हाट आई एम फिशिंग। अगेन ऑन अ वीकली चार्ट यू कैन सी वो बना रहा है यूएसडी आईएनआर डोजी स्पिनिंग टॉप, व्हिच इज अ कंप्लीटली कंफ्यूजन इनडिसिसिव कैंडल सर। तो नेक्स्ट कैंडल, अभी आप किसी ने पूछा था मॉर्निंग स्टार, तो मॉर्निंग स्टार इसमें कैसे बन सकता है वीकली कि आई वांट डाउन गुड डाउन ट्रेंड, दिस डोजी, और अगर एक ग्रीन कैंडल आता है तो वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाता है विच इज अ बुलिश पैटर्न। मॉर्निंग स्टार ऐसा बनेगा सर, दिस इज अ मॉर्निंग स्टार। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं सर। क्लियर सर? किसी ने पूछा था मॉर्निंग स्टार, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है वो मॉर्निंग स्टार है सर। गॉट इट सर? ओके हाँ मैम, दिस आप अगर नेक्स्ट वीक अगर ये फॉर्म बनेगा तो आई एम लुकिंग फॉर गुड बुल इन यूएसडी एनआर ऑन वीकली टाइम फ्रेम। बराबर है सर? ओके, so this is from my side. I have mentioned I am bullish on FMCG stock. I am little bit bear with the Nifty, Bank Nifty, and USD NR I am strong. Crude में देखते हैं सर, तो crude it is almost as of now facing resistance triple top, right sir? This is a morning star. करेक्ट And it has achieved its target almost. राउंड कंप्लीट हो गया है। जनरली मॉर्निंग स्टार राउंड बॉटम कंप्लीट करता है जो ऑलमोस्ट हो गया। अभी नेक्स्ट मूव होगा जो डायरेक्शन क्लियर करेगा। अभी इस लाइन के ऊपर सस्टेन होता है देन आई एम बुल, और अगर इस लाइन के नीचे सस्टेन होता है तो आई एम बेयर। क्लियर? ओके is as of now sentiment of the crude in the market, and don't underestimate crude क्योंकि it's a very big global commodity, very strong global commodity। उसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। जैसे हम बोले अगर मुझे एशियन पेंट्स को स्टडी करना होगा ना फंडामेंटल्स, तो मुझे क्रूड देखना पड़ेगा बिकॉज द रॉ मटेरियल कम्स फ्रॉम द क्रूड। पेंट स्टॉक, केमिकल स्टॉक, दिस ऑल आर मेनली रॉ मटेरियल डिपेंडेंट ऑन द क्रूड, राइट? ऑटो एंड दिस ऑल आर डिपेंडेंट ऑन क्रूड। Chemical stock, even in pharma also many raw materials comes from the crude. Crude is a basic material to find out many chemicals in the world.
तो क्रूड इज अ बेस। तो मैं जनरली ये तीन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे स्क्रीनशॉट भी देखे होंगे ग्रुप्स में, तो निफ्टी, क्रूड और यूएसडी आईएनआर ही होगा, क्योंकि बाय दिस ऑल दिस थ्री इंस्ट्रूमेंट ना आई कैन कम अक्रॉस ऑल द थिंग ऑफ द ग्लोबल एंड एज वेल एज इंडियन। मुझे आइडिया लग जाता है कि सेंटिमेंट्स क्या है मार्केट का। दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू फोकस ऑन दिस थ्री, और ट्रेड भी मैं उसी में करता हूँ, राइट। तो एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन, किसी का कोई सवाल हो तो बताइए सर, तो दैट विल सर डिसाइड माय डायरेक्शन। सर निफ्टी आईटी जरा डिस्कस कीजिए ना। ओके, निफ्टी आईटी सर। So I am opening the chart of Nifty IT, which is a information technology index। और मुझे अभी देखो सर, मुझे निफ्टी आईटी में काम करना है ना, तो पहले तो मैं डॉलर ही देखूंगा सर। अगर डॉलर स्ट्रांग होता है ना, तो आई एम लुकिंग निफ्टी आईटी बुलिश। अगर डॉलर वीक होता है तो निफ्टी आईटी में बेस हो रहा है। डजंट मीन कि डॉलर ऊपर जाएगा तो बाई करेंगे, अरे हाँ डॉलर नीचे जाएगा, नहीं। द टेक्निकल फॉलो करना है। वी आर जस्ट कैचिंग द सेंटीमेंट ऑफ द मार्केट, राइट। अभी आई एम लुकिंग निफ्टी कंप्लीटली रेंज बाउंड, और सब रेड कैंडल से मींस बेरिश मूव इज देयर। बट अगर मैं वीकली पे जाता हूं तो मुझे आइडिया ज्यादा अच्छा मिल रहा है। क्या कौन सी पैटर्न है सर वीकली पे, कोई बताएगा? विच पैटर्न इज दिस? बेरिश हरामी। हाँ, दिस अ बेरिश हरामी। बेरिश हरामी में जनरली क्या होता है, निफ्टी सॉरी जो भी स्टॉक है वो गैप डाउन खुलता है, और उसके अंदर ही, उसकी बॉडी के अंदर ही क्लोज दे देता है। अभी देखो सर, गैप डाउन होगा मींस स्मार्ट मनी गैप डाउन कर सकता है। अब ट्रेडर्स में, हमारे रिटेल में तो इतनी ताकत नहीं है सर कि गैप डाउन होगा। तो इज अ बेरिश सेंटीमेंट इन निफ्टी आईटी एज ऑफ नाउ। अगर सर मुझे काम करना है तो ये जो बेरिश हरामी पैटर्न है ना सर, उसके नीचे में नेगेटिव काम कर सकता हूँ। आई एम लुकिंग निफ्टी आईटी एज अ बेरिश एज ऑफ नाउ। क्लियर मैम? यस सर। हाँ, दिस अ बेरिश सेंटीमेंट एज ऑफ नाउ, बट बिलो दिस अगर मुझे थोड़ा काम करना है तो मैं ये रेड है ना, उसके नीचे काम करूंगा टिल दिस लाइन। उसके नीचे तो ज्यादा पैनिक आएगा सर, बराबर है सर। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ये लाइन जो है उसके नीचे स्ट्रॉन्ग 12,900 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश सेंटीमेंट इन अ निफ्टी आईटी, राइट। अब ये रेंज बाउंड घूमेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा मूव है। हाँ बोलिए सर। निफ्टी फार्मा और टीसीएस डॉक्टर सर, रेड्डी। टीसीएस। हाँ, एक मिनट में निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा आई एम लुकिंग फॉर करेक्शन। हाँ, थोड़ा मुझे करेक्शन चाहिए। ये देखिए निफ्टी फार्मा वीकली पे है, और अगर मैं डेली पे जाता हूँ देन आई हैव ऑलरेडी दिस अ फिबोनाची मैंने लगाया है। देखो मैं आपके सामने वापस लगाता हूँ सो दैट यू कैन जज। फिबोनाची जनरली यूज्ड टू पुट ऑन अ प्रीवियस लेग। ये प्रीवियस लेग था जहां से स्टॉक ऊपर से नीचे गिरा, और उसका टारगेट था पहले 38.2, 61.8, 100% डन। उसके ऊपर सस्टेन हो गया विच इज कंसीडर्ड एज अ राउंड बॉटम ब्रेकआउट, और उसके ऊपर उसने 161.8 टारगेट किया। अभी सर उसके ऊपर टिक नहीं रहा, तो आई एम लुकिंग फॉर सम हेल्दी करेक्शन इन फार्मा एज ऑफ नाउ। और अगर मैं बिग फार्मा की बात करूं लाइक सन फार्मा, आई एम लुकिंग फॉर अ गुड करेक्शन इन सन फार्मा आल्सो। यू कैन सी लास्ट वीक में मैंने चार्ट पोस्ट किया था जब उसने ब्रेकडाउन दिया था फ्रॉम दिस असेंडिंग चैनल। तो अभी भी सर आई एम लुकिंग दिस निफ्टी सन फार्मा एज अ गुड हेल्दी करेक्शन है। डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी, यस आई एम लुकिंग फॉर करेक्शन, क्योंकि वो डबल टॉप बना रहा है सर, राइट सर। डबल टॉप इज ऑलवेज बेरिश पैटर्न। रवि हिंगू जी, यू कैन आस्क मी। सर टीसीएस। ओके, टीसीएस, ओके। बेरी है सर, कंप्लीटली राउंड है सर। इधर है ना सर, मैंने डिस्कस किया था सिमेट्रिक ट्रायंगल बना के ऊपर गया है, बट अभी वापस देखो सिमेट्रिक ट्रायंगल का ही सपोर्ट ले रहा है। अगर वो ये चैनल के नीचे गया देन आई एम लुकिंग फॉर बेरिश, बट स्टिल एज ऑफ नाउ आई एम बेरिश इन दिस मार्केट, बिकॉज यू कैन सी दिस अनदर ascending channel breakdown होगा तो bearish है सर अभी। Got it sir? I am looking IT bearish as of now. Right रवि हिंगू जी? TCS आपने पूछा था, बट मुझे चैनल ब्रेकडाउन चाहिए। हाँ, इस चैनल के ऊपर है तो बुलिश है, इस चैनल के नीचे जाएगा तो बेरिश है। क्लियर सर?
हेलो। सर लोरस लैब। अरे सर आप प्रोसेस Clear. पूछिए, नॉट डीप। आप पूछिए सर कैसे क्या करना है। बेरिश ही है सर, जा रहा है नीचे, बेरिश जा रहा है सर पूरा नीचे। बहुत बस था ना सर इस स्टॉक में। बिल्कुल सर। बस होता है ना, उससे दूर हट जाओ सर, सच बोल रहा हूँ सर। अभी देखो ये जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया, वो तोड़ के नीचे आ गया। आई एम लुकिंग फॉर बेयर। अच्छे स्टॉक में काम करो सर जिसमें बस ज्यादा होगा ना। यू कांट इमेजिन द थिंग्स से उसमें क्या हो रही है सर, सच बोल रहा हूँ। अभी देखो मैं तो निफ्टी में ही पूरा दिन निकाल लेता हूँ, मुझे तो कभी दिक्कत नहीं आती। आई एम नॉट गोइंग टू सर्च फॉर अ बजिंग स्टॉक कि इसमें न्यूज है, इसमें ये है तो मुझे उसमें काम करना चाहता है। नहीं सर, ऐसा होता तो एवरीवन मस्ट बी इन अ प्रॉफिट। अभी देखो सब सोच रहे हैं कि आईसीआईसीआई कल स्ट्रॉन्ग पुल बैक मारेगा, बराबर है सर। तो क्या सभी लोग प्रॉफिट में होंगे सर? मार्केट डजंट रिएक्ट दैट वे सर। सभी लोग बुलिश है सर आईसीआईसीआई के लिए, और हो सकता है कल आईसीआईसीआई सरप्राइज भी दे दे जैसे लास्ट टाइम एक्सिस बैंक ने दिया। और सर इसमें लोरस में भी रिजल्ट आने के बाद सब लोग बुलिश थे 500 के अबव। हाँ, बट डोंट ट्रेड दिस वे। रिजल्ट सब सही है, लॉन्ग टर्म के लिए सब सही है, बट अगर रिजल्ट आता है तो मार्केट उसके हिसाब से रेयरली रिएक्ट करता है सर। हो सकता है स्मार्ट मनी आप लोग बाय कर रहे हो, स्मार्ट मनी अपना गुड्स ऑफलोड कर रहा हो, वो ऑलरेडी बाय में बैठा हो, जब रिजल्ट अच्छा है वो प्रॉफिट बुक करे। दैट्स व्हाई वी नीड टेक्निकल एनालिसिस। सर आरएसआई कैसे यूज करते हो वो बताइए ना। ओके ओके, आरएसआई। व्हाट्स योर गुड नेम मैम? त्राशा। अच्छा ओके। रिलेटिव, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सर, आरएसआई। ओके, जनरली सर हियर सो मच पैरामीटर्स आर देयर, 70 30 50। 70 को ओवरबॉट बोलते हैं, 30 को ओवरसोल्ड बोलते हैं, मिडल को 50 बोलते हैं, और 9 and 14 इज अ बाय डिफॉल्ट सेटअप। तो आई एम पुटिंग या राइट सर। अभी देखिए सर कई लोग, मैं जनरली 739 रिकमेंड नहीं करता, ओवरबॉट के लिए मैं 80 रिकमेंड करता हूँ, और ओवरसोल्ड के लिए मैं 30 रिकमेंड करता हूँ सर। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड इजीली ढूंढना है तो आरएसआई इज अ गुड इंडिकेटर टू स्टडी। हाँ हाँ। अभी सर कई बार ये एवरेज की लाइन है, वो भी आप एनालिसिस कर सकते हैं सर। एवरेज के नीचे है तो वो बेरिश सेंटीमेंट है, एवरेज के ऊपर है तो वो बुलिश सेंटीमेंट है, राइट। बट उसमें सर बहुत चीक चेक होता है, कई बार हमको क्लियर आइडिया नहीं मिलता। तो आप सिंपल आरएसआई भी यूज कर सकते हैं जिसमें मैं ये एवरेज की लाइन है ना, रेड लाइन, उसको मिटा दूंगा सर, राइट। नाउ आई एम लुकिंग क्लियर। और इधर मैं सब पैटर्न्स है ना वो भी ड्रॉ कर सकता हूँ लाइक दिस, कि आरएसआई ब्रेकडाउन हुआ, उस तरह से भी मैं काम कर सकता हूँ इधर। बट मेन पर्पस ऑफ द आरएसआई इज ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। और सर दूसरा, अगर समझ लीजिए मुझे इधर बुलिश ब्रेकआउट मिला, राइट सर मैम, बुलिश ब्रेकआउट मिला, ये बुलिश है, ये पैटर्न दिख रही है, दिस अ चैनल ब्रेकआउट, राइट है सर, राइट है ना। चैनल ब्रेकआउट हुआ, कौन सा है, ये लॉरेस लैब है, बराबर है, दिस अ चैनल ब्रेकआउट। अभी जब चैनल ब्रेकआउट हो रहा है तब आरएसआई 50 क्रॉस कर रहा है, राइट, करेक्ट। 50 क्रॉस कर रहा है ना, मींस सिंपल अगर लिमिट टर्म्स में बताऊं तो 50% के ऊपर है तो बुल सेंटीमेंट है, 50% नीचे तो बेयर सेंटीमेंट है, राइट। ओके। अभी देखिए लॉरेस लैब में ये ब्रेकडाउन हो गया, बराबर है, स्ट्रॉन्ग। क्यों ब्रेकडाउन हुआ? क्योंकि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया ना, और वो तोड़ के नीचे आ गया, और आरएसआई भी 50 के नीचे जा रहा है। बराबर। तो अभी आरएसआई क्या बोल रहा है कि मैं तो नीचे जाऊंगा, क्योंकि प्राइस भी नीचे जा रही है। तो देखो जो हमने प्राइस एक्शन थोड़ी देर पहले एनालिसिस किया ना सर, इट वाज सपोर्टेड बाय आरएसआई आल्सो। गॉट इट? गॉट इट मैम? यस यस। और अनदर अगर कॉम्प्लिकेटेड चीजों में जाना है देन यू कैन गो फॉर आरएसआई डाइवर्जंस, पॉजिटिव डाइवर्जन, नेगेटिव डाइवर्जन, हिडन डाइवर्जन, पॉजिटिव हिडन डाइवर्जन, पॉजिटिव नेगेटिव हिडन डाइवर्जन, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू स्टडी, बराबर है। बट just go for price action and then go for indicator, don't go for indicator independently। हाँ, प्राइस एक्शन के ऊपर जाना है फिर इंडिकेटर के ऊपर जाना, कभी इंडिकेटर से प्राइस एक्शन के ऊपर मत जाइएगा।
it may give you a very bad results, right? तो कभी भी इंडिकेटर को यूज करिए तो एज अ सपोर्टिंग एक्टर की तरह यूज करिए, राइट? फिल्म के मेन एक्टर एक्ट्रेस की तरह कभी मत यूज करिए इंडिकेटर को। गॉट इट मैम? यस सर। हाँ, बहुत सारी चीजें RSI यू कैन अगर काफी टाइम से RSI 50 to 40 के रेंज में अगर चल रहा है हाँ तो इनडिसीजन माना जाता है। यू आर राइट मैम, इट इज इनडिसिसिव। अगर मैम आपको RSI में बहुत डीप में जाना है, डीप में, आई हैव स्टडीड ऑल द वीडियोस ऑफ द एरिक माउथे। उसके वीडियो इतने अच्छे, उनके एनालिसिस इतना अच्छा है एरिक माउथे का। आई थिंक आई एनालिसिस 3 years बैक लाइक एनीथिंग एरिक माउथे, जो मुझे अभी भी रिजल्ट दे रहा है, और वो आपको क्लियर दिखाएगा कि इसको ऐसी चीजें हो रही है। इट्स अ गुड मटेरियल इफ यू वांट टू स्टडी RSI। और नेगेटिव डाइवर्जन पॉजिटिव डाइवर्जन भी गुड है, बट फोकस मोर ऑन प्राइस एक्शन। ये मैंने बहुत किया है काम, बहुत सच बोल रहा हूँ, मैं बहुत काम किया है, एंड आई हैव अटेम्प्टेड मेनी थिंग लाइक एनीथिंग RSI डाइवर्जन, बट above all I see the price action main is। अगर मुझे RSI को यूज करना है तो सपोर्टिंग एक्टर की तरह यूज करूंगा, नॉट फॉर अ फाइनल डिसीजन, राइट? एरिक माउथे के वीडियो बहुत अच्छे, स्टिल आई एम लर्निंग फ्रॉम दैट वीडियो। हाँ, उनका एनालिसिस बहुत अच्छा है, एरिक माउथे। ओके मैम, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ कि जो कल आपने निफ्टी में 50 पॉइंट लिए थे एकदम वीक, मतलब हाँ मैंने मैसेज भी डाला था आपको एकदम लो वॉल्यूम में, तो वो मतलब क्या है कि आपने कैसे लिया था, वो थोड़ा सा मेरे को देखना है। okay, so let's go to the Nifty, and basically I work main on price action। हाँ, it's only logic, there is no magic at all in this market। अगर कोई हिंदी में बताइएगा सर, मेरे को थोड़ा इंग्लिश नहीं आता है। हाँ, हिंदी में बताऊंगा। ओके मैम, अभी देखो मुझे भी याद नहीं है सर कि मैंने कैसे दिया था सर, मुझे चार्ट ओपन करूंगा तब याद आएगा, क्योंकि मैं पूरे दिन निफ्टी में पड़ा रहता हूँ। ओके, मैंने क्या दिया था? 50 पॉइंट का 9300 के नीचे बेरिश था। हाँ, 9300 के नीचे बेरिश था। तो मैंने क्या बोला तो भूल भी गया सर, सच बोल रहा हूँ। मैंने बाई दिया, सेल दिया था, क्या दिया था? आई डोंट नहीं, सेल दिया था शायद। सेल दिया था, ओके। तो 9300 के नीचे मैंने LOC दी थी ना, 9300 के नीचे। हाँ, LOC दी थी, ये देखिए। हाँ, तो मैंने LOC दी थी 9300 के नीचे। आई एम लुकिंग फॉर बेयर सेंटीमेंट, बराबर है? हाँ, मैंने बोला था अगर 9300 के नीचे गया तो बेयर है। उसके ऊपर देखो 9300 के नीचे गया और तुरंत स्पाइक लगा दिया, देन आई गॉट 50 पॉइंट्स। यही बात कर रहे थे ना सर? हाँ, अभी एक चीज दिखाता हूँ सर। अगर सर ये इतना नीचे जा रहा है फिर भी गैप फिलिंग नहीं कर रहा है, देन आई एम लुकिंग फॉर बुल। और मुझे तो सिर्फ इधर जैसे 9300 के ऊपर गया ना, आई हैव इमीडिएटली पोस्टेड कि बॉटम मुझे लग रहा है, आई एम लुकिंग फॉर बुल, और वो ऊपर गया एंड आई बुक इमीडिएटली, बराबर है? देन आई हैव अगेन सॉर्टेड बिलो दिस, राइट? अगर आपने मेरा लॉकडाउन वाला वीडियो देखा होगा, दिस अ सॉर्टिंग पैटर्न and it rewarded again, you can see double bottom target done ना sir, again 9300। इसको क्या पैटर्न बोलते हैं आपने बोला अभी? it's a दरवास बॉक्स बोलते हैं इसको। it was invented by निकोलस दरवास। आप उसकी बुक पढ़ सकते हैं, to know the psychology of the market also। हाँ sir, Nicholas Darvas was a troupe dancer. He used to do dancing, or someone says singing, but Darvas का spelling है DARVAS or DARWS, both are right because English is a very funny language। Okay, तो आप उसका बुक पढ़ सकते हैं to know the psychology of the market। सर उस टाइम टेलीफोन नहीं थे, टेलीग्राम था। 2 दिन बाद तो उसको स्टॉक की प्राइस पता चलती थी। At that time he made millions with such a पैटर्न्स ऑफ द रेंज बाउंड। स्टॉक रेंज बाउंड हो जाता है, फिर वो रेंज तोड़ता है तो स्प्रिंग की तरह गिरेगा या स्प्रिंग की तरह उछलेगा। इट्स द मोस्ट रिवॉर्डिंग पैटर्न। तो वापस यहाँ सेल हुआ और डबल बॉटम था, वो मेरा टारगेट था, वो वापस हो गया।
अभी 12 से 1 में मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप ट्रेड करो इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर. Avoid take entry between 12 to 1 PM because it's a muted hours. वहां मार्केट जनरली एकदम साइलेंट जोन में चला जाता है, म्यूटेड में चला जाता है. फिर मैंने बोला था 12 से 1 बजे 12 से 1 में काम मत करो सर, सच बोल रहा हूँ. 12 से 1 में सिर्फ आराम करो. अभी देखो मुझे आप लोग कई बार पूछते हैं सर व्हाट इज द व्यू ऑफ द सन फार्मा. मैं क्या बोलता हूँ पता है? 1 बजे बाद काम करो. सबको बोलता हूँ सी यू आफ्टर 1 PM. और यार 9:30 पौने 10 के बाद में सवेरे टाइम वॉल्यूम थोड़ा वॉलेटिलिटी रहता है. माय एक्सपीरियंस इज अगर 12 से 1 में आप ट्रेड कर रहे हो ना सर, नई एंट्री ले रहे हो, इट्स तो फंसने का चांस रहेगा. हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका स्टॉप लॉस जाएगा. अगर आपको कितना भी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल मिले, अवॉइड इट. और 12 से 1 में तभी काम करो जब मार्केट कोई इवेंट कैरी कर रहा हो, लाइक इलेक्शन रिजल्ट, बजट, RBI पॉलिसी. then it will active at that time. Otherwise सर 12 से 1 में सच बोलूं सर, मैं क्या करता हूँ उल्टा काम करूँ. 12 से 1 में उल्टा काम होता है सर, उसमें सक्सेस रेट ज्यादा मिलेगा सर. उल्टा काम मतलब क्या सर? बतला है रिवर्स ट्रेड. रिवर्स डीप में नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज ये गलत चीज है सर. बराबर है, बट ये होता है सर, सच बोल रहा हूँ सर. देयर आर सो मेनी. Okay, Naveen ji, you can ping me. Naresh ji, you can ping me. My mobile number is 9727783339. मैं आपको WhatsApp कर दूंगा. नरेश गिडवानी जी, my mobile number is 9727783339. Just ping me on WhatsApp. मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा सर. ओके, तो ये है लॉकडाउन स्ट्रेटेजी जहाँ स्टॉक रेंज हो जाता है. हाँ बोलिए मैम. सर और एक चीज पूछना था, आप वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन समझाइए ना, बिकॉज समटाइम्स वॉल्यूम स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. हाँ मैं जनरली मैं वॉल्यूम बहुत रेयरली देखता हूँ. रेयरली. ओके. 10 ट्रेड है उसमें से मैं एक बार ही वॉल्यूम देखूंगा. वो कब दिखाता हूँ? अभी कौन सी पैटर्न हमने देखी जिसमें 1 वाइट सोल्जर था? 1 वाइट सोल्जर कौन सी? कॉलपाल. ओके, कॉलपाल. अभी देखो मैं कॉलपाल ओपन कर रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम. नाउ हमने देखा दीज अ बुलिश पैटर्न. बराबर है, बुलिश पैटर्न है. अभी हाँ, अभी मुझे सर इधर वॉल्यूम देखने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि हमको ट्रेन वो पकड़नी है जो स्टेशन से शुरू हो रही है. ये ट्रेन ऑलरेडी भाग चुकी है, अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच चुकी है. तो यहाँ से मुझे लगता है कि ट्रेन ऊपर जा सकती है. देन आई कैन गो फॉर वॉल्यूम. राइट, वॉल्यूम अच्छा है सर, वॉल्यूम अच्छा है ना? एवरेज है सर. हाँ एवरेज है, बट इट्स अ गुड वॉल्यूम. बराबर है. अकॉर्डिंग टू मी सिंस लास्ट 3 days वॉल्यूम देखेंगे तो उसके हाईएस्ट वॉल्यूम में गिना जाएगा. ये जितने भी वॉल्यूम है हाईएस्ट के आसपास का ही है इसमें. तो इट्स अ गुड वॉल्यूम. इस तरह आप कर सकते हैं वॉल्यूम प्लस, या आप कर सकते हैं कि ये वॉल्यूम प्लस है ना सर, उधर आप 10 का या किसी का मूविंग एवरेज लगा दीजिए जिसके ऊपर आप कंफर्टेबल हो. कुछ लोग 5 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं, 10 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं. तो वहां अगर ब्रेकआउट मिलेगा देन यू कैन कंसीडर दिस थिंग एज अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ब्रेकआउट. सर जैसे ब्लॉक डील्स होती हैं, जैसे HUL हुई, HDFC हुई, उसके बाद उसमें काफी बड़े मूव देखने को मिले, तो प्राइस एक्शन में उसका भी कोई वेटेज नहीं रहता? नहीं रहता है सर, बिलीव मी सर. प्राइस एक्शन जो होगा वो स्मार्ट मनी फॉलो करेगा और करेगा बिकॉज दे आर डिसिप्लिन. गैप अप गैप डाउन होता है सर, वहां पे आपको टेक्निकल्स मिलता है सर. बराबर है. और वो डील उसी हिसाब से होती है, स्मार्ट मनी उसी हिसाब से बाय सेल करता है. हाँ, वही प्राइस एक्शन को बनाता है जो. हाँ, प्राइस एक्शन वही बनाता है सर. हम सोच रहे हम मार्केट को नहीं, स्मार्ट मनी मार्केट को रूल कर रहा है. बिल्कुल सर, वो तो है. और मैंने अभी दिखाया, ये देखो 161.8 जो है उसके ऊपर निफ्टी फार्मा सस्टेन नहीं हो रहा. तो जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा, आई एम नॉट लुकिंग निफ्टी फार्मा एज अ बुलिश सेंटीमेंट. और सर बिलीव मी सर, आई रेयरली सी वॉल्यूम. हाँ मैम, आई रेयरली सी वॉल्यूम. अगर ऐसा कुछ होगा देन आई एम लुकिंग प्राइस एक्शंस आर इनफ फॉर मी टू जज द ट्रेड. मैं जितना ज्यादा एनालिसिस डालूंगा ना, 2 minutes एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस. अगर मैं एक चीज फॉलो कर रहा हूँ, सही तरह से फॉलो हो रहा है, तो मुझे रिजल्ट मिलेंगे सर. मैं भेलपुरी नहीं करूंगा. बराबर है. सर एशियन पेंट का चार्ट.
हाँ एशियन पेंट्स को। अभी एशियन पेंट्स गिर रहा है ना, अच्छा यस, क्यों? हाँ बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, इट इज अ सेंटीमेंट ना, यस, बट डोंट ट्रेड दैट वे कि क्रूड बढ़ रहा है इसलिए मुझे एशियन पेंट्स को सेल करना है, नहीं, आप लेवल देखिए देन गो फॉर सेल, बराबर है। क्रूड क्या दिखा रहा है कि बादल छाए हैं, बारिश होगी कि नहीं होगी वो तो एशियन पेंट्स ही बताएगा सर, बराबर है। क्रूड गिर रहा है इसलिए छाता खोल के बैठ नहीं जाना है सर, क्रूड चढ़ रहा है इसलिए छाता नहीं खोलना है, गॉट इट। अभी एशियन पेंट्स बहुत गिर चुका है, नाउ आई एम लुकिंग फॉर सम पुल बैक। अभी देखो सर मैं सेंटीमेंट समझाता हूँ, एशियन पेंट्स ऑलरेडी अच्छा गिर चुका है सर, ओके। अभी आई एम लुकिंग फॉर सम पुल बैक इन एशियन पेंट्स, वीकली पे देखते हैं सर, ओके। वीकली पे उसका टारगेट आता है ये, थोड़ा बाकी है सिर्फ, बराबर है। अभी वापस डेली पे जा रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर सम पुल बैक इन एशियन पेंट्स, कब? अगर मैं उसको क्रूड के साथ कोऑर्डिनेट करूं, क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल अभी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, इट इज फेसिंग रेजिस्टेंस, डबल टॉप बना चुका है, तो अगर ये नीचे जाएगा इट्स अ पॉजिटिव सेंटीमेंट फॉर क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स, राइट। बट एशियन पेंट्स में तब तक बाय नहीं करूंगा जब तक मुझे एक अच्छा वाला बुलिश कैंडल ना मिले ग्रीन वाला, देन आई कैन लुक फॉर एशियन पेंट बाय साइड, गॉट इट सर। और हो सकता है मॉर्निंग स्टार जैसा भी बना दे, ओके। as of now still bears are intact in Asian paints, clear sir? यस सर। Any other question from anyone? If you ask me about process ना, I will be more happy, हाँ sir, कि सर कैसे आप डिसीजन लेने, सर वॉल्यूम, हाँ हाँ बोलिए सर। सर वॉल्यूम फॉर इंडेक्स एंड बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि नहीं? हाँ होता है, जब रिवर्सल पैटर्न होगा ना तभी मैं वॉल्यूम देखूंगा सर, होता है वॉल्यूम, होता है इम्पोर्टेंट सर। सर लास्ट वीक बैंक निफ्टी और ये सब उसका वीएक्सआई कम होने के कारण ही हुआ था सर। हाँ देखो सर विक्स डाउन जा रहा है, और बेसिकली आप लोग विक्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना सर। अभी मैं कुछ और चीज दिखाता हूँ, एवरीबॉडी इज फोकसिंग ऑन विक्स, ये देखो विक्स मैं भी देखता हूँ, है ना, विक्स नीचे जा रहा है सर। विक्स इज जनरली वॉलेटिलिटी इंडेक्स बेस्ड ऑन द 1 मंथ ऑप्शंस, राइट है, उसके ऊपर से डिसाइड होता है कि विक्स मींस इट्स अ वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वो मार्केट की वॉलेटिलिटी बताता है, ओके। अगर मैं सर विक्स की जगह यूज क्या करता हूँ सर, एटीआर यूज करता हूँ सर। देखो मैं अभी निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, ओके। अभी मैं ओपन करता हूँ एटीआर विच गिव्स मी मोर क्लैरिटी देन विक्स, 14 डेज एवरेज पीरियड, राइट सर। तो देखो सर हमारा एटीआर गया था कितना, पीक देखिए एटीआर का, एटीआर बताया सर 750, हाँ मींस एवरेज ट्रू रेंज, मतलब निफ्टी के हाई और लो के बीच में इंटरडे में कितना मूव हो सकता है। तो 750 पॉइंट तक गया था जब मार्केट जोरों से इधर गिरा था ना सर, तब एटीआर वाज 750 पॉइंट्स, और अभी एटीआर कितना है 183 पॉइंट्स, राइट सर, और एवरेज इज 243 पॉइंट्स, मींस निफ्टी इंट्राडे में 250 पॉइंट का मूव आ सकता है। दिस अ बेसिक एनालिसिस फ्रॉम एवरेज ट्रू रेंज। सर एटीआर इंडिकेटर क्या होता है? एटीआर मतलब एवरेज ट्रू रेंज, मींस निफ्टी ऑन एन एवरेज कितना पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ओके बराबर है। अभी देखो एटीआर की एवरेज रेंज है 243 पॉइंट्स, बराबर है। तो निफ्टी के हाई और लो के बीच में एवरेज 250 पॉइंट्स हो सकता है। इट इज क्या बोलते हैं सर कि चलो निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर गया, और अगर आज का एटीआर ब्रीच हो गया है ना, तो मींस इट्स अ डन। उसके ऊपर जाने के लिए उसको स्ट्रॉन्ग बायर्स चाहिए, उसके नीचे जाने के लिए उसको स्ट्रॉन्ग सेलर्स चाहिए, राइट। तो एटीआर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू एटलीस्ट आपको पता चल जाता है कि निफ्टी इंटरडे में कितना ऊपर जा सकता है कितना नीचे जा सकता है।
एज ऑफ नाउ 250 पॉइंट का ATR है, बराबर है। गॉट द लॉजिक मैम? हेलो, यस सर। जब 750 के पास था ना, तब 750 पॉइंट इज वेरी कॉमन इन इंट्राडे। 300-400 पॉइंट ऊपर नीचे चला जाता था, बराबर है। कई बार एक कैंडल 100 पॉइंट की बनी थी, ऑल थैंक्स टू हाई ATR। और हाई ATR लीड्स टू, कई बार हाई ATR होगा ना सर, तो आपको 5 मिनट की टाइम फ्रेम भी छोटी लगेगी, आपको बड़ी लगेगी। आपको 1 मिनट या 3 मिनट के ऊपर काम करना पड़ेगा इफ यू आर इंटरनेट ट्रेडर, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल ही 50-100 पॉइंट की बढ़ जाएगी, तो आपका स्टॉप लॉस कितना बढ़ जाएगा। आपको लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर काम करने पड़ेगा जब ATR इज वेरी हाई। गॉट इट? हेलो, यस सर। इसका मतलब अगर ATR लो हो तो रेंज मतलब छोटी है। हाँ, मार्केट बहुत ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ATR हाई है तो मार्केट ऊपर नीचे होता है ऑन एन एवरेज, ओके, बराबर है ना सर। कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी बिजनेस हो, एवरेज के ऊपर काम करता है ना सर। हाँ कि इस महीने का एवरेज क्या है, कल आपने कितना गुड्स बेचा, अभी देखो आपने 10 दिन में 10,000 की एवरेज है, आज आपकी 8,000 की एवरेज है, मींस यू आर वर्किंग लेस देन लास्ट 10 डेज, राइट ना। सही है। एवरेज के ऊपर ही काम चलता है। ये स्मार्ट मनी इज आल्सो वर्किंग ऑन एवरेज ATR। गॉट इट? सुहास सर, हाँ बोलिए। हम प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं? प्रॉफिट मींस अभी मैंने कोई पोजीशन ले लिया है, लाइक अभी मैंने एशियन पेंट सेल किया है, हाँ ठीक है, उसको मुझे ट्रेलिंग प्रॉफिट में जाना है, तो इजी वे कौन सा है? सर, प्रॉफिट में बढ़ाना है, उससे ज्यादा फोकस करके मैं लॉस कैसे कम करूंगा, ऑटोमेटिक प्रॉफिट बढ़ जाएगा सर। व्हाट द लॉजिक सर? हाँ सर, वही बोल रहा हूँ, लेकिन वो आई नेवर फोकस। हाँ बोलिए सर। वो स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करें हम? ओके, अभी देखिए, समझ लीजिए मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ। अभी देखो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिखा रहा हूँ कैसे काम करता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, समझ लीजिए मेरा स्टॉप लॉस था 95, एंट्री था 100। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। यस सर, हेलो। दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। और टारगेट इज 1110, बराबर है सर। ये मेरा ट्रेड है, गॉट इट? ओके सर। 110 हो गया। अभी मुझे प्राइस एक्शन बोल रहा है या वॉट एवर द एनालिसिस है, वो मुझे बोल रहा है कि मुझे लग रहा है 120 आएगा, गॉट इट? तो टारगेट 2 हो जाएगा 120। अभी देखो मेरा प्रायोरिटी है कि जितना मैंने 10 पॉइंट किया था ना, वो तो कम नहीं होना चाहिए, बराबर है, क्योंकि वो तो मेरा प्राइमरी ट्रेड था। तो अभी मेरा स्टॉप लॉस 110 हो जाएगा सर, गॉट इट? ओके। अभी देखो आगे जाएगा टारगेट 3 और मुझे लग रहा है 130 आएगा, तो अभी मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा 120, गॉट इट सर? क्योंकि जो मैंने फिक्स किया है ना ट्रेड, उतना प्रॉफिट तो मेरा फिक्स हो ही जाना चाहिए, उससे कम तो पॉसिबल होना नहीं चाहिए कोई भी ट्रेड हो। क्योंकि मैंने 100 पहले फिक्स किया था 10 पॉइंट मुझे मिलने चाहिए, तो 10 पॉइंट से नीचे जाएगा तो मैं तो काट लूंगा पोजीशन, क्योंकि विच वाज माय बेसिक ट्रेड। अभी मैंने फिक्स किया कि 20 पॉइंट है तो उसके नीचे जाएगा तो मैं काट लूंगा, गॉट द लॉजिक? मींस मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जाऊंगा, लास्ट प्रीवियस टारगेट वाज माय स्टॉप लॉस हो जाएगा, गॉट इट? क्योंकि मेरा प्राइमरी ट्रेड है, उसका प्रॉफिट इरोड नहीं होना चाहिए। बट सुहास सर, कभी कभी ऐसा होता है ना, वॉलीटिलिटी आती है 110 के नीचे 106 तक गया, ठीक है, फिर वहां से रिवर्स होता है 111 तक, ठीक है, हाँ, और फिर वहां से वो वापस नीचे आता है सेकंड टारगेट देने के लिए 120 के लिए। ओके। तो फिर तब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो ही जाता है, तो वो केस में क्या करें? सर एक बात बोलूं, आप इंट्राडे काम करते हैं सर? हाँ, इंट्राडे भी करता हूँ और पोजीशन भी करता हूँ। इंट्राडे में शॉर्ट कौन सी टर्म टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं सर? मैं 30 मिनट जनरली यूज करता हूँ, और फिर मैं कितनी? कन्वर्ट होता हूँ 15 कितनी? मिनट में। कितनी? 30 मिनट एंड 15 मिनट। 30 मिनट 50 मिनट बहुत बड़ी है सर। अगर आप प्योर इंट्राडे काम करते हैं ना सर, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी है 15 मिनट सर। बट मैं है ना, अभी लाइक मैंने अभी बैंक निफ्टी मैंने शॉर्ट किया था, ठीक है, फ्राइडे को, फिर मंडे को नीचे खुला, फिर वापस वो ऊपर गया,
ठीक है। तो वो केस में क्या हुआ कि मेरा शॉर्ट पोजीशन जो था वो ऊपर टॉप कैंडल जो पहला मार्केट ओपन हुआ ना, तब वहां पे मेरा एसएल हो गया और वहीं से ही बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली नीचे आया, जो मेरा शॉर्ट पोजीशन था वो। सर तो वो बैड लक हो गया मेरा वो पहली कैंडल पे ही। there is no bad luck in this market, sir. There is no bad luck in this market. बट वो स्टॉप लॉस तो हो गया ना मेरा, देखो क्योंकि 20 ही बैंक निफ्टी था और मैंने करीब 10,000 के नियर मैंने लॉस लिया। हाँ, अभी सुनिए सर, अभी मेरी साइकोलॉजी समझाता हूँ सर, और आपको शायद बैड भी लगेगा, आई डोंट माइंड सर। सर, आई एम नॉट फॉलोइंग सच अ सिस्टम लाइक स्टॉप लॉस। इफ आई एम इंट्राडे ट्रेडर ना, बराबर है, आई एम हैविंग ओनली 2 ऑप्शन, बाय और सेल। बराबर है सर? ओके। मींस मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मेरा बाय का सेल बनेगा या सेल का बाय बनेगा। ओके, बट लॉजिक। और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होके ऊपर जाता है ना वापस, तो there's something wrong in my system. Got the logic, sir? Okay. हाँ, बराबर है सर। और अगर आपको इस चीज के ऊपर फाइट करना है ना, चलो आप 15 मिनट के ऊपर काम करते हैं। मैंने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया, आपका स्टॉप लॉस होगा डे हाई, राइट सर? यही था ना स्टॉप लॉस, बोलिए सर। हाँ, वही हुआ, वही था ना। हाँ, वही डे हाई का ही स्टॉप लॉस हो गया। ये हाई के ऊपर क्लोज हुआ सर? नहीं हुआ, बस दैट्स इट। मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ सर। अच्छा, होगा सर। 10 में से 1 या 2 बार ऐसा होगा कि ऊपर फट जाएगा, आपका लॉस बहुत बड़ा होगा सर, बिलीव मी, होगा। बट 10 में से 9 बार आपको फायदा कर जाएगा सर। ओके, मींस उसको क्लोज होने देना है, क्लोज होने उसके पहले हमें पैनिक नहीं होना है। सर एक बात बोलूं, और सर होगा कई बार बहुत, अगर आपको लगता है एटीआर बहुत हाई है, मार्केट में न्यूज़ है, देन डोंट ट्रेड, क्योंकि ये ऊपर फट जाएगा तो। ओके, बराबर है, तब आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तब आपका, अभी देखो सर, पहले आधे घंटे में अगर काम करना है ना, हियर योर कॉमन सेंस वर्क मोर देन टेक्निकल। ओके, क्योंकि इधर इतनी वॉलेटिलिटी होती है, वॉल्यूम इतना हाई होता है, न्यूज, बस, ग्लोबल मार्केट, यूएसडी, आईएनआर, सब बहुत सारी चीजें होती है इधर। बराबर है, बीटीएसटी, एसटीबीटी सब होता है इधर। तो हियर टेक्निकल से ज्यादा काम करेगा कॉमन सेंस। आप कॉमन सेंस मतलब टेक्निकल सेंस। आपने जितनी बार इधर की मूवमेंट अपनी आंखों से देखी होगी ना सर, वो आपकी आंखें इंडिकेटर की तरह यहाँ काम करेगी सर। गॉट इट? अभी देखो, मैं अगर 15 मिनट के ऊपर काम कर रहा हूँ सर, तो मैं तो इधर बाय नहीं करूंगा सर, स्टॉप लॉस हिट नहीं करूंगा, मुझे क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर। मैं 5 मिनट के ऊपर काम करता हूँ, बट मैं आई एम गोइंग विथ योर लॉजिक ऑफ 15 मिनट। बराबर है सर? और अभी मैं सेल का लॉजिक के लिए जा रहा हूँ। तो दिस माय रेंज बाउंड मूवमेंट पैटर्न, दरवाज बॉक्स, उसके नीचे क्लोज हुआ। मैंने एलओसी दिया था, निफ्टी का देख लेते तो आपको आइडिया पड़ा है। निफ्टी का एलओसी मैंने दिया था 9300। बराबर है? इधर 9300 के नीचे क्लोज हुआ सर, राइट? नाउ आई एम लुकिंग फॉर सेल साइड। ओके, गॉट इट सर? अदरवाइज नॉट। सर मुझे कोई भी ट्रेंड पकड़नी है ना सर, मैं चालू ट्रेंड में नहीं चढ़ूंगा सर, एटलीस्ट उसको स्टॉप हो जाने दो फिर चढ़ूंगा। चालू ट्रेंड में चढ़ूंगा गिर जाऊंगा सर। ओके, गॉट इट? और आई एम नॉट सजेस्टिंग, अभी का जो मार्केट का मोमेंटम है 15 मिनट के हिसाब से मुझे सही नहीं लगता। क्यों सर? मेरा स्टॉप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो रहा सर 15 मिनट में। 5 मिनट में हो रहा है, 5 मिनट में मुझे हो रहा है, स्टॉप लॉस छोटा मिलता है, टारगेट बड़ा मिलता है। 15 मिनट में आई एम नॉट लुकिंग। मैंने 15 मिनट के ऊपर भी काम किया है, 20 मिनट के ऊपर भी किया है, 7 मिनट, 8 मिनट, 13 मिनट सब अटेम्प्ट कर लिया है। वो 5 मिनट लुक्स गुड टू मी अकॉर्डिंग टू माय साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग। 15 मिनट आई एम नॉट लुकिंग गुड फॉर इंट्राडे। आपको शॉर्ट मिलेंगे, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना सर, फेवरेबल नहीं होगा सर। मैंने सर एक विली का बुक्स मैंने रीड किया हुआ है, ठीक है? तो वो विली बोल रहा है कि डिपेंड मार्केट मूवमेंट, आप आपका स्ट्रेटेजी चेंज करके भी आप आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है? कर सकते हैं, वही बोल रहा हूं। तो वो कैसे हम चूज करें कि अभी मार्केट मूवमेंट जो है या वॉलेटिलिटी जो है उसके हिसाब से हमें अपना स्ट्रेटेजी चेंज करना है, तो वो स्ट्रेटेजी हम कैसे चेंज करें? देखो अभी सर मैं वही समझा रहा हूँ, मेरे एटीआर का समझा है, एटीआर बराबर। अभी देखो मैं वापस जा रहा हूँ,
निफ्टी डेली के ऊपर, बराबर है सर। इधर 750 पॉइंट का एटीआर है सर, बराबर है सर। मींस 15 मिनट की कैंडल होगी वहां तो 100 पॉइंट का एक कैंडल बन जाएगा। व्हाट द लॉजिक सर? तो 100 पॉइंट तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा सर। तो यहाँ मुझे 5 मिनट की कैंडल जो है वो 50-60 पॉइंट की बनेगी, तो वो भी मुझे वही लगेगी। तब एटीआर हाई होगा तो मुझे 3 मिनट के ऊपर या 1 मिनट के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि एटीआर इज वेरी हाई। 1 मिनट की कैंडल होगी, 1 मिनट की कैंडल होगी वो भी 20-30 पॉइंट की बन जाएगी। व्हाट द लॉजिक सर? तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल करना है पहले तो अपना। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस छोटा है देन ओनली आई कैन ट्रेड। स्टॉप लॉस बड़ा है तो मैं ट्रेड से काम ही नहीं करूंगा, तो उस टाइम आपको टाइम फ्रेम चेंज करनी पड़ेगी सर। गॉट इट? किसने पूछा था सर? मैंने म्यूट किया है सबको। हाँ मैंने पूछा था। हाँ, तो जब भी एटीआर हाई हो ना सर, गो फॉर लोअर टाइम फ्रेम। एटीआर लो है देन गो फॉर हायर टाइम फ्रेम, डोंट वरी, बराबर है सर। ओके। मैं ज्यादा हाँ बोलिए सर। सर आप बहुत बढ़िया समझा रहे हैं। हाँ, और आप जो एलओसी की बात कर रहे थे वो हमको कैसे पता चलेगा? हमको आपसे जुड़ना है, यानी यूट्यूब पे या टेलीग्राम में, तो उसका लिंक वगैरह मुझे पिंग करिए। मेरा मोबाइल नंबर है 97277833, तो आपको सब मिल जाएगा उसमें। सर हम पहली बार आए, मैं और ये रवि हिंगू, तो हमको हमारे फ्रेंड पीयूष सर ने इनवाइट किया था, तो आज हम पहली बार आए। आपका बहुत मजा आ रहा है, तो अगले टाइम कब होगा, कैसे होगा, सब? नो प्रॉब्लम, मैं करता रहता हूँ। यू कैन वॉच माई ऑल द वीडियोस, यूट्यूब पे डाले हैं, Vimeo पे डाले हैं, यू कैन वॉच। चैनल कौन सा यूट्यूब पे चैनल? मुझे सर पिंग करिए व्हाट्सएप के ऊपर, में सब मिल जाएगा। ओके, आप मुझे पिंग करेंगे ना सर, मैसेज डालेंगे ना हाई, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बिजनेस मैसेज आपको पहुंच जाएगा। मैं अभी इधर बैठा हुआ हूँ फिर भी। थैंक यू सर। और उसमें सब डिटेल्स है, राइट? बहुत बढ़िया है, आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। इट्स माय पैशन सर। अच्छा है। ओके, चाइल्डहुड में है ना सर, मैं अपने कजिन्स को पढ़ाता था। ओके। कॉलेज में मैं प्राइमरी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। ओके। फार्मा में था, एरिया मैनेजर बना तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी पढ़ाना था ना, कैसे मार्केट करना। और अभी मैं मार्केट में सबको पढ़ाता हूँ कि डील कैसे करना। बहुत अच्छा है। तो जॉब इज ऑलमोस्ट सेम, टीचिंग, बस प्रोफेशन चेंज हो रहा है सर, और कुछ नहीं। मगर अच्छा काम कर रहे हैं आप। ओके, थैंक यू सर। बोलिए सर, और कोई सवाल हो तो। एंड आस्क मी अबाउट द प्रोसेस, दिस विल हेल्प यू। अगर मछली डायरेक्ट में खाने को दे दूंगा तो आप सिर्फ मछली खाएंगे, दूसरी बार मछली खुद नहीं ढूंढेंगे सर। नहीं सर, अभी कोरोना में है ने वेज ज રહેવાનું આપણે। वेज है ना, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ सर। सर हम सब आपने तो खाखरा पिज्जा खावाना सुहास भाई। टाइम फ्रेम है। आई एम यूजिंग 5 मिनट्स सर, 90% टाइम आई एम यूजिंग 5 मिनट टाइम। सुहास भाई रिलैक्स, वन बाय वन। मैं इधर ही हूँ सर, मैं नहीं जाने वाला जब तक आपके सवाल खत्म नहीं होंगे, डोंट वरी। हाँ अभी ये कोरोना चल रहा है ना सुहास भाई, तो आपके हाथ के वो खाखरा पिज्जा ही खाने, बस वेज ही रहना है। नहीं खाओ मस्त। बोलिए कोई सवाल हो तो सर, अबाउट एनी टेक्निकल फंडामेंटल, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में अपने लेवल के ऊपर बेस्ट आपको समझाने का। बोलिए सर। टीसीएस के ऊपर आपका व्यू क्या है अभी नेक्स्ट? TCS आई एम स्टिल नॉट लुकिंग फॉर एनी गुड डायरेक्शन। आईटी, हाँ मुझे नहीं लगा। अभी देखो ये पैटर्न है ना, पुल बैक का है, पैटर्न पुल बैक का है सर, यहाँ से ऊपर तक। बट स्टिल आई एम नॉट कन्विंस बिकॉज ऑफ दिस वीकली टाइम फ्रेम। देखो वीकली पे वो बना रहा है बेरिश हरामी, तो सर ये इसके नीचे जाएगा तो बेयर में घुस जाएगा सर। बेयर सेंटीमेंट है अभी तो, सॉरी बेरिश हरामी पैटर्न बना रहा है। आई एम लुकिंग TCS एज अ वीक, नॉट स्ट्रॉन्ग। बराबर है सर। सर प्राइस सेक्शन में आपने कहा कि 12 पैटर्न्स है, उसके सीखने के लिए कोई बुक नेम रेकमेंड करेंगे आप? मुझे पिंग करिए और गूगल में करेंगे सब मिल जाएंगे सर। सर वो बहुत ज्यादा मिल जाता है। और अरे मुझे पिंग करिए, मेरे पास बुक होगी मैं दे दूंगा सर आपको। मेरे पास होगी, मुझे ढूंढना पड़ेगा, बट आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू। आप मुझे जस्ट पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, तो मैं आपको बुक दे दूंगा सर। बहुत सारे PDF पड़े हुए मेरे पास, आप बोलोगे वो दे दूंगा। सुहास भाई वो हम जो चैनल ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, मींस अभी हमने जो सपोर्ट चैनल जो ड्रॉ किया है उसमें हेयर एंड टेल कंसीडर करना है या सिर्फ बॉडी टू बॉडी ही जाना है? सर आई यूज्ड टू मार्क बॉडी, मैं बॉडी मार्क करता हूँ। कई लोग
पुश भी कंसीडर करते हैं, बट आई एम गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट विद बॉडी। ओके, मींस अभी ब्रेकआउट में सिर्फ क्लोजिंग ही, मींस बॉडी का ही ब्रेकआउट आना चाहिए, हेयर एंड टेल का नहीं आना चाहिए, राइट? मुझे बॉडी ही चाहिए सर। सर क्यों? एक साइकोलॉजी बताऊं मार्केट की सर, सच बोल रहा हूँ, विच आई एम फीलिंग, मे बी किसी को गलत लगे सही लगे, बट व्हाट आई एम फेसिंग सर, इस मार्केट में एक चीज का बहुत डर है सालों से, पता है कौन सी चीज? नहीं। आपका ट्रेड कभी फेल हो जाएगा, आप क्या बोलोगे, अरे यार ऑपरेटर काम करते हैं प्रॉफिट नहीं हो रहा, राइट ना? हाँ, ऑपरेटर करते हैं, ऑपरेटर ये करते हैं स्टॉक को, सही है सर, ऑपरेटर स्टॉक को घुमाते हैं, बट सर मैं ऐसा सोच ही नहीं रहा कि ये मूव है ऑपरेटर का मूव, जो भी मूव है वो मार्केट है, मार्केट हमेशा सही होता है। वी कांट ब्लेम द मार्केट, मार्केट गलत था मुझे लॉस हुआ, हम गलत है, मार्केट कभी गलत नहीं होता। तो सर ऑपरेटर क्या करता है, स्टॉक को ऊपर ले जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, स्टॉक को नीचे ले जाएगा फिर ऊपर आ जाएगा सर, बट जो एक्चुअल क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग हाँ, वो अभी सर ऑपरेटर समझ लो कि मार्केट में ऑपरेटर है एक्टिव, स्टॉक को ऊपर ले जा रहे हैं सर एकदम, बट सर ऑपरेटर इज हैविंग ओनली स्ट्रेंथ टू पिक द स्टॉक अपसाइड, ऊपर क्लोजिंग देने की उन लोगों की ताकत नहीं है सर। ओके, स्टॉक को वो लोग एकदम नीचे ले जाएंगे, नीचे, राइट सर? राइट। बट यहाँ क्लोजिंग देने की उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे वो इतना नीचे जाएगा, स्मार्ट मनी तो है, वो तो एक्टिव ही होता है मार्केट में, वो अपने लेवल के ऊपर बाय और सेल कर लेगा, क्योंकि वो दे आर डिसिप्लिन, वो अपने लेवल के ऊपर काम करेंगे, और जो एक्चुअल क्लोजिंग आता है ना सर, इट जज विद द मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मार्ट मनी, नॉट द ऑपरेटर, जैसे सर एक्चुअल में हुआ। बराबर है सर, जो इधर एक्चुअल में हुआ। तो विक्स होगी, काम लगेगी, जब 52 हाई है 52 लो है तो विक्स ही ज्यादा काम लगेगी, बट इन रूटीन मार्केट आई यूज्ड टू फोकस ऑन बॉडी, क्योंकि बॉडी इज अ एक्चुअल टेक्निकल एनालिसिस फॉर मी अकॉर्डिंग टू माय स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। और अगर सर मैं लाइन भी अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बराबर है सर, तो मुझे क्लियर मिल रहा है, देन व्हाई शुड आई डाइवर्ट माय स्ट्रेटेजी सर, आई एम ऑलरेडी गेटिंग गुड। देखो सर अभी टीसीएस मुझे तो नहीं पता था ना, आप लोग पूछने वाले हैं सर, तो टीसीएस में मुझे क्लियर सपोर्ट की लाइन मिल रही है, ट्रेंड लाइन मिल रही है। चलो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं पूछ के हिसाब से, मुझे कोई डिसिप्लिन ही नहीं लग रही है सर, मुझे आई एम नॉट कन्विंस, राइट सर? ईयर में ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे सब बॉडी पार्ट मिल रहे हैं, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मुझे दिख रहे हैं, देन आई एम मोर कन्विंस्ड टू ट्रेड ऑन दिस वे। एंड सर टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट अ परफेक्ट साइंस, which science work for me, best for me, got it sir? Okay. आप लोग विक्स के साथ भी if you are comfortable with विक्स एंड इसको एडजस्ट करते रहना है बेस्ड अपॉन जो ट्रेंड बन रहे हैं। यस, अभी देखो मैंने निफ्टी के ऊपर बीच में ड्रॉ किया था, बराबर है सर, अभी निफ्टी के ड्रॉ कंटिन्यू है इंटैक्ट, अभी सर इधर ब्रेक डाउन ही है निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी है ना, निफ्टी का, ओके, दिस इज अ ब्रेक डाउन, राइट, दिस इज अ ब्रेक डाउन, नीचे क्लोजिंग दे दिया है सर उसने, बट जो विक्स है ना, विक्स देखो रिट्रेस अच्छी हो गई ना, दिस नॉट कन्विंस मी टू गो टुवर्ड्स, इसलिए मैं बोला कि 9100 के नीचे कंफर्टेबल सेल जाएगा निफ्टी, इसलिए बोल रहा हूं मैं सर। ओके, अगर यहाँ अच्छी रेड कैंडल होती ना सर, डाउन मस्त, तो मंडे को गैप डाउन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा थी सर, बराबर है? हेलो हेलो मैम, गॉट द पॉइंट? यस सर। हाँ, तो ट्रेंड लाइन को एडजस्ट तो करना है, बट ऐसे नहीं है कि मुझे बाय फोर्स एडजस्ट करना है। देखो अभी मैं डेली चार्ट के ऊपर जा रहा हूँ, तो दिस ओके ट्रेंड लाइन, बैंक निफ्टी, निफ्टी ओके, तो ये मैंने राइजिंग वेज पहले ड्रॉ किया था, ये पहले मैंने ये ड्रॉ किया था, बराबर है? तो मैंने वो तोड़ा नहीं है, ये ब्रेकआउट भी हुआ, अभी ब्रेकडाउन ही हुआ, द स्टिल डायरेक्शन इज नॉट क्लियर। सर यहाँ पे स्लैंड रिवर्सल पैटर्न भी है ये वाला। कौन सा सर? सर ये ग्रीन कैंडल के ऊपर छोटा सा ग्रीन ऊपर गया, फिर नीचे में गैप डाउन ओपन हुआ, ये 4 मई को सर जो गैप डाउन हुआ। हाँ ये ब्रेकडाउन था, ये ब्रेकडाउन था ना सर? सर इसके पहले की कैंडल के ऊपर ये, इसको स्लैंड रिवर्सल कहते बोलते हैं ना, ग्रीन ग्रीन एंड रेड।
ग्रीन Yeah. ये हाँ, ये ऑलमोस्ट इवनिंग स्टार जैसा है, परफेक्ट इवनिंग स्टार नहीं। बट सर अगर मुझे परफेक्ट रिवर्सल चाहिए तो मुझे अप ट्रेंड भी स्ट्रॉन्ग चाहिए ना सर। हाँ, बट इधर कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा है सर, जिग जैग है ना सर। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी कैंडल है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 कैंडल्स है, बराबर है? बिल्कुल सर। 25 कैंडल है, उसमें से कितनी तो इनडिसिसिव हुए है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मीन 50% कैंडल इनडिसिसिव है जो क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रही है। ठीक है। Then how can I consider this thing as a uptrend or neither a downtrend? Okay. Just like these are corona sentiments. कोई क्लियर नहीं है सर, राइट? Got the logic sir? Maximum indecisive candle मतलब मार्केट इज कंप्लीटली indecisive। अभी यहाँ देखो सर क्लियर दिख रहा है सब, नीचे अच्छी वाली रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, यहाँ भी देखो कंटिन्यूस अच्छी कैंडल दिख रही है। हियर ऑल इंडिसिसिव कैंडल्स। ठीक है। हाँ, और ये देखिए ये पैनिक है, कोरोना पैनिक, बराबर है 2020। अभी हम चलते हैं 2008 में। अरे सर बहुत खा लिया। 2008 राइट सर? जब मार्केट 2008 में फॉल आया था, मैं वीकली के ऊपर जा रहा हूँ तो क्या आइडिया आएगा। यस, ये 2008 है, बराबर है सर, जहां यहाँ फॉल हुआ दिख रहा है। अभी ये फॉल बहुत स्टीप हुआ, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, राइट सर? मीन्स इधर लग रहा था कि कुछ होप है, ऊपर भी जाता नीचे भी जाता, ऊपर भी जाता नीचे भी जाता। और मुझे याद है तब उसने 60 to 70 डेज लगाए थे जब बिग फॉल हुआ था। और इधर जो फॉल हुआ है ना सर, वो कंप्लीटली 1-1.5 महीने में खत्म कर दिया पूरा उसने। क्योंकि सर यहाँ है ना, यहाँ 2008 में फाइनेंशियल फ्रॉड था। हाँ, ये फाइनेंशियल था, बट वहां होप थी, होप थी ना, होप लग रही थी थोड़ी बहुत कि चलो ऊपर आएगा नीचे आएगा। इधर यहाँ तो कुछ होप अभी लगी नहीं रही जब तक कोरोना का वैक्सीन ना आ जाए सर। इधर कुछ होप लगे, दिस रिट्रेसमेंट है सर, दिस नॉट अ पॉजिटिव पुल बैक इन द मार्केट। दिस रिट्रेसमेंट है, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग या थोड़ा बहुत ऊपर आया, बट आई एम नॉट लुकिंग दिस द गुड पुल बैक। और जो मैक्सिमम पुल बैक है, दिस मेजर कंट्रीब्यूटर इज रिलायंस, बाकी कोई स्टॉक चल ही नहीं रहा सर। हाँ, रिलायंस ही चल रहा है, बाकी एचडीएफसी बैंक स्टिल ऑल आर इन अ बिग पैनिक। एटीआर भी शो कर रहा है ना वो नेगेटिविटी। हाँ, एटीआर तो सिर्फ एटीआर नॉट ये नेगेटिव सीए कर रहा है, बट इट्स द रेंज दिखा रहा है सर। डोंट रेंज दिखा रहा है, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट ही शो कर रहा है अभी। हाँ, वो रेंज छोटी हो रही है। डोंट ट्रेड दैट वे ऑन एटीआर बेस कि उसके नीचे गया तो बाय, उसके सेल कर। नो डोंट ट्रेड दैट वे। हाँ सर, ओके, इट्स अ बैड वे, बहुत गलत चीज है वो, उस तरह काम मत करिए। एटीआर इज जस्ट टू आइडेंटिफाई द रेंज। आपको आइडिया है कि कितने इंच बारिश हो सकती है सर, बराबर है? बस वो है सर। क्या ये 10-300 तक जाएगा ऊपर? हाँ, नहीं मुझे नहीं लगता सर, आई एम नॉट लुकिंग। हाँ, मुझे ये पोलन फ्लैग ब्रेकडाउन लगता है। देन आई एम लुकिंग फॉर मोर पेन बिलो 7500 एंड आई एम नॉट लुकिंग एनी गुड फंडामेंटल चेंज इन द वर्ल्ड और इंडिया। पैनिक इज कमिंग इन द मार्केट फॉर अ बिग पैनिक इन द मार्केट। ओके, अहेड आल्सो। ओके, क्योंकि सर भूकंप तो आ गया ना सर, ये भूकंप आ गया, अभी आफ्टर शॉक बाकी है सर। और आफ्टर शॉक ज्यादा पेन देता है ना सर, भूकंप से ज्यादा पेन देता है आफ्टर शॉक। डरा के खिलाएगा, डरा के कराएगा सर काम। Got it, sir? Hello. Okay, yes sir. Any other confusion, any other doubts, any other query, technical, fundamental, portfolio management, most welcome for any questions. एक चीज मुझे और पूछनी थी सर। हाँ बोलिए सर।
कि जैसे 9300 का जैसे मान लीजिए आपने एलओसी कोई भी दिया, हाँ तो उसमें मतलब क्या है कि काफी बार वो ऊपर नीचे करता रहता है, तो उसमें एसएल होने का भी डर रहता है, तो उसमें कैसे अपने श्योर हों कि हाँ अब अपने को शॉर्ट सेल बनता है या गो फॉर बाय 5 बनता है? मिनट 5 मिनट क्लोजिंग बेसिस सर। मतलब जैसे 9300 दिया तो 9300 के बाद में मतलब कितनी देर अपने वेट करें कि ये 5 एकदम मिनट प्रॉपर 5 मिनट क्लोजिंग बेसिस। 5 मिनट वेट करके फिर 5 शॉर्ट मिनट कर सकते हैं? हाँ, और अगर एटीआर बहुत छोटा है देन गो फॉर 15 मिनट ऑल्सो। हाँ सर, अगर आप 15 मिनट के ऊपर काम कर 15 मिनट के ऊपर, बट फिर आपका नहीं, मैं 5 मिनट पे ही करता हूँ तो वैसे। 5 मिनट के ऊपर करिए सर बिंदास, बट अवॉइड 12 to 1, बराबर है। 12 से 1 में अवॉइड करिए। हाँ ओके सर फिर 12 से 1 में वो थैंक यू ऊपर सर। नीचे होगा सर। हाँ लॉजिक मैं एलओसी इतना प्रिसाइजली देता हूँ, इतना सोच सोच के देता हूँ कि कोई बंदा 9300 के नीचे गए और शॉर्ट करे तो भी एटलीस्ट को 30-40 पॉइंट मिल जाए सर, या 9300 के ऊपर जाए, फिर आपके ऊपर है सर। देखो मैं एलओसी इसलिए देता हूँ कि कोई बंदे को कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता, बट ही फॉलो मी लाइक एनीथिंग, तो वो 9300 के नीचे जाएगा, सेल कर देगा। ठीक है। अभी वो ही नोज नथिंग अबाउट टेक्निकल, तो मैं क्या बोलता हूँ एटलीस्ट 30-40 पॉइंट मिले बुक कर लो, 3-4 हजार मिल रहा है, इट्स ओके फॉर द डे व्हेन यू नो नथिंग, बराबर है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस पता है देन यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस। अगर आपको पता है तो देन यू कैन डू वैल्यू एडिशन कि भाई 9300 के नीचे गया है तो नीचे जाने के चांसेस है, फिर आपका टैलेंट काम करेगा सर, बराबर ना, जितना आप जानते हैं, जितना आपने सीखा है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरा एलओसी इस तरह काम करेगा, बराबर है। जो लोग सर एक दिन क्लास ऑन मार्केट में भी हो सकता है, हो सकता है, ट्रेड मतलब एलओसी क्रॉस कर रहा हो तब हो सकता है। मैं तो लाइव ही डालता हूँ, मैं लाइव डालता हूँ सर कि मेरे एलओसी नहीं हाँ हो रहा है, लाइव डालता हूँ मैं टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में कि डॉट लो बनाया है, आई एम लुकिंग फॉर बाउंस बैक, जो मैंने कल डाला था। अभी देखो कल मैंने डाला कि भाई आई एम लुकिंग फॉर बाउंस बैक, 50-60 पॉइंट मिल गया, बराबर है सर। किसी ने बहुत स्लो वॉल्यूम था, मैंने डाला था, मैंने कहा इतने कम वॉल्यूम में भी 50 पॉइंट निकाल लिए। बट किसी ने ये नहीं डाला कि 9300 एलओसी है, वहां से बाउंस मारा इसलिए ऊपर बोल रहा हूं मैं। सबकी नजर यही है कि मैं डाल रहा हूँ, बट किसी ने ये नहीं सोचा कि 9300 है, बाउंस लिया इसलिए मैं डाल रहा हूँ यार। और कई बार बहुत फास्ट होता है, मैं बहुत चीजें नहीं डाल सकता इसलिए फटाफट डाल देता हूँ। सर एलओसी क्या हुआ, फुल फॉर्म क्या हुआ सर? लाइन ऑफ कंट्रोल, लक्ष्मण रेखा। ओके ओके। स्ट्रॉन्ग लेवल जहां से निफ्टी अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है या रिवर्स हो सकता है। ओके। बेंचमार्क की तरह काम करता है, बेंचमार्क, बराबर है सर। एक दिन जिस दिन भी हो सर पॉसिबल तो आप देखिएगा ना लाइव में, वीडियो कॉलिंग। ओके श्योर सर। सुहास सर, हम डॉनचेन को कैसे इजीली हम यूज कर सकते हैं? इसको डॉनचेन, ऑस्किलेटर्स डॉनचेन चैनल, अरे डॉनची चैनल से ज्यादा काम करो बोलिंजर बैंड पे, डॉनची चैनल दिखाता हूं। डॉनची चैनल वो अच्छा है बोलिंजर बैंड से, बोलिंजर बैंड गिव यू मोर क्लैरिटी। अभी देखो मैं डॉनची चैनल ओपन कर रहा हूँ, ये मेरे एडवांस कोर्स में है बट कोई स्टूडेंट फॉलो नहीं करता, बराबर है। अभी देखो सर, ये डॉनचिन चैनल यहाँ से ना ब्रेकआउट है। अभी मैं इधर काम करूंगा नहीं काम होगा कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, अभी इसके ऊपर बाय था क्योंकि डॉनचिन चैनल ने मूव दे दिया, राइट सर, और चैनल भी ऊपर जा रहा है। और अभी सर ये चीज है ना, ये डॉनचिन चैनल जो है ना, इसकी जगह आप अगर बोलिंजर बैंड यूज करोगे तो ज्यादा क्लैरिटी देगा। सच बोल रहा हूँ, कंसेप्ट इज ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम, गॉट इट सर। ओके। अभी देखो सर ये स्टैग्नेंट हो गया सर, मींस बाइंग नहीं चल रहा, गॉट इट सर। ये स्टैग्नेंट हो गया, राइट, भी नहीं चल रहा। बेटर यूज दिस थिंग इन अ बोलिंजर बैंड सर, सच बोल रहा हूँ। बोलिंजर बैंड इज अ, अगर मुझे कोई पूछा जाए कि सबसे अच्छे इंडिकेटर कौन है तो दीज आर कंसीडर्ड एज अ बोलिंजर बैंड एंड इचिमोकू क्लाउड। अगर इंडिकेटर के ऊपर ही काम करना है, फॉर मी प्राइस एक्शन इज द बेस्ट, बट बीइंग अ मेंटर अगर आप पूछे तो बोलिंजर बैंड इज बेटर देन डॉनचिन चैनल सर, गॉट इट सर। ओके, गो फॉर बोलिंजर बैंड्स, ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट है।
स्क्वीजिंग और वाइडनिंग। बोलिंजर बैंड का पता है सर कंसेप्ट? नहीं, एक बार बता दो ना सुहास भाई वो भी। बोलिंजर बैंड, आज कई लोगों ने वोट किया था। अगर सिंपली मुझे बोलिंजर बैंड के ऊपर काम करना है तो देखिए, ये जब ब्रॉडनिंग होता है ना सर, हाँ, तब जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है विथ स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉमिसिंग, बराबर है सर? ओके, ये ब्रॉडनिंग हो रहा है, देन इट विल गो डाउन। गॉट इट सर? ओके, और जब ये ब्रॉडनिंग बंद हो जाता है तब एवरेजिंग शुरू होता है, जिसको बोलते हैं मीन रिवर्जन। ओके, FII इज नॉट हियर टू मेक लॉस। स्मार्ट मनी इधर लॉस करने के लिए, चैरिटी करने के लिए नहीं है। दे आर डूइंग मीन रिवर्जन, और जब वो ऊपर जाएगा तब वो प्रॉफिट बुक करेगा, क्योंकि दे आर हैविंग ह्यूज लिक्विडिटी। अगर मार्केट में सही तरह से उसका सेंटीमेंट समझना हो ना, बोलिंजर बैंड इज अ गुड इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं समझ लो प्राइस एक्शन के ऊपर जा रहा हूँ और दिस अ ब्रेकडाउन फॉर मी, राइट सर? ओके, और ये भी वाइडनिंग हो रहा है, मींस नीचे जाएगा, इट कंटिन्यू द ट्रेंड, राइट सर? ओके। तो व्हेन स्क्वीजिंग एंड ब्रॉडनिंग इज अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू जज। और सच बोल रहा हूँ सर, इससे अच्छी क्लैरिटी कोई इंडिकेटर नहीं देता बोलिंजर बैंड। प्राइस एक्शन भी सेम देता है, बट इट गिव यू मोर आइडिया कि अगर कोई बंदे को प्राइस एक्शन क्लियर नहीं है तो डायरेक्टली वर्क ऑन बोलिंजर बैंड के ऊपर काम करेगा तो भी क्लैरिटी आ जाती है कि ये हो रहा है मार्केट में। सिंपली सर, इसको बायर समझो, इसको सेलर समझो, बराबर है? हाँ, हाँ। और बीच की लाइन है वो एवरेज है। उसके नीचे जाएगा तो नीचे तरफ जाएगा, उसके ऊपर जाएगा तो ऊपर के बैंड की तरफ जाएगा। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग यू इन लेमन टर्म्स, बराबर है? मैं स्टैंडर्ड डेविएशन में समझाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएंगे, इधर SD1 SD2 की तरह काम कर रहा है, रीजन 2 यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 2, राइट सर? ओके। तो उसके बेस के ऊपर काम करता है, डेविएशन के बेस के ऊपर बोलिंजर बैंड काम करते हैं। तो अभी जो सुहास भाई आपने जो बताया ना 9110 के नीचे निफ्टी खराब, तो मींस जो एवरेज ब्रेकआउट भी आ रहा है ना बोलिंजर बैंड का, वही है ना सर? हाँ, हाँ, वही हुआ। अभी मैंने तो बोलिंजर बैंड नहीं खोला था सर। राइट सर। मींस 2 + 2 = 4। ओके। 2 × 2 = भी 4 होता है सर। राइट। और 2 = 2 भी 4 होता है सर। राइट। मींस मैं बोलिंजर बैंड फॉलो करूं, प्राइस एक्शन फॉलो करूं, चैनल फॉलो करूं, फिबोनाची फॉलो करूं, ऑलमोस्ट चीजें सेम मिलती है, ऑलमोस्ट। राइट, मींस क्रॉस कंफर्मेशन करना है, हम जो प्राइस एक्शन कर रहे हैं तो उसका क्रॉस कंफर्मेशन ऐसे भी हम कर सकते हैं। कि देखो अभी देखो, मैंने बोलिंजर बैंड देखे भी नहीं, 9100 बोला, अभी चीजें भी वही बोल रही है ना। राइट, मींस हम सही जा रहे हैं प्राइस एक्शन के लिए। जरूरी नहीं है सर कि हर बाइक सही चाहो, जो बाइक मैं चला रहा हूँ मेरे लिए सही है, राइट। पर सभी बाइक्स डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगी। साइकिल स्लो पहुंचाएगी, बुलेट स्पीड में पहुंचाएगी सर। बुलेट में रिस्क ज्यादा है, साइकिल में रिस्क कम है। बुलेट के एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं ना, साइकिल के कम होते हैं सर। राइट। तो जो हम चैनल ड्राइंग जो करते हैं तो उसमें हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, जो 9 और 20 का जो बीच में एवरेज जो आ रहा है बोलिंगर में, ठीक है, तो उसके ब्रेकआउट्स पे भी हम कर सकते हैं। मींस एक्शन कंफर्मेशन होना जरूरी है। समझो कि ब्रेकआउट हुआ है और 9110 के नीचे वो जा रहा है तो हम निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं सर। राइट सर। राइट सर। एक बार हम बैंक निफ्टी का भी देख लें सुहास भाई, ठीक वैसे ही। वो ऑलरेडी बेयर में है सर। राइट, मींस जो ग्रीन कैंडल जो है उसके लो के नीचे हमें शॉर्ट पोजीशन लेना है। यू आर राइट सर। वीकली लो इज ऑलवेज गुड ब्रेकडाउन पॉइंट। ओके, बट ऑलवेज गो फॉर सस्टेनेबली, उसके नीचे टिकना चाहिए। राइट। अगर सर उसके नीचे गिर सकता है तो उसको टच करके ऊपर भी तो आ सकता है सर। दे आर वर्किंग एज अ सपोर्टेड रेजिस्टेंस ना। बट सुहास भाई, एज अ ट्रेडर मेंटालिटी कि हम एक बार वो ब्रेकआउट पे शॉर्ट कर देते तो एकदम मिनिमम स्टॉप लॉस से हमें टॉप पे शॉर्ट पोजीशन मिलेगा ना। ऑलवेज सही जा रहे हो सर। अगर ट्रेन मुंबई से निकल रही है अहमदाबाद जाने के लिए, तो मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ मैं बोरीवली से पकड़ लूंगा, बोरीवली से आगे निकल जाएगी, मेरा स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा, टारगेट भी छोटा हो जाएगा सर। राइट। तो फिर मैं राह देखूंगा कब अहमदाबाद पहुंचे और अहमदाबाद से वापस मुंबई की ओर आए। राइट, व्हाट द लॉजिक। अभी जो मोमेंटम है वही है
ट्रेन शुरू होने वाली है, तो पकड़ो। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। सर ऐसा है कि जब हम लोग इंटरडे काम करते हैं, चाहे वो 5 मिनट का चार्ट हो या 10 मिनट का चार्ट हो, हाँ, तो व्हेन यू यूजिंग सुपर ट्रेंड सर, उसमें कौन सा होता है वो जो 10/3 या 7/2? बाय डिफॉल्ट कई में 9/2 आता है, कई में 10/3 आता है सर। सर वैसे आप बेसिकली कौन सा यूज करते हो? आई वेरी रेयरली यूज सुपर ट्रेंड। मैं इंडिकेटर बहुत कम यूज करता हूँ, और अगर आपको यूज करना हो तो 10 दिन यूज करिए। देयर आर सर आपने एक्चुअली वो सिखाया था ना, मैग्नेट थ्योरी सुपर ट्रेंड। कौन बोल रहा है सर? सर चरणजीत सिंह। संजीत सिंह वी डिस्कस इन स्टूडेंट सेशन। अभी इसको इनको तो सबको पता नहीं है सर। हाँ सर। हेलो, बराबर है सर। देखो मेरा स्टूडेंट्स का वेबिनार है नेक्स्ट वीक में, तब वो डिस्कस करेंगे सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। अभी सर उसमें अभी मैग्नेट थियरी के ऊपर पहुंचने में 10 दिन लगे थे सर। नो डाउट सर, नो डाउट। बराबर 10 दिन लगे थे ना सर। यस सर। तो इधर कैसे डायरेक्टली मैं उधर जम को, इधर तो कुछ जानता भी नहीं है सर कुछ। neither no price action, neither no magnet, neither no reverse, नहीं सर। What is sir? ओके सर। हाँ भैया, पोर्टफोलियो से एग्जिट करने का भी क्या ये सही समय होगा? क्या सर? पोर्टफोलियो से एग्जिट करने का भी ये सही समय होगा? नहीं, इधर तो बाय ऑन डिप्स। अगर नीचे लेवल मिले तो बाय करो फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नहीं, अब हेलो 9,000 के ऊपर अभी जब माल बिक रहा है, हाँ, तो वो सही समय नहीं होगा क्या? नहीं सर, अभी आपने अगर 7,000 8,000 के ऊपर बाय किया है तो 9,800 900 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग था। मैंने बोला भी था इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग टाइम, टेलीग्राम में भी और व्हाट्सएप में भी। तो मैंने खुद रिकमेंड किए थे कई स्टॉक, मदरसन सुमी, L&T फाइनेंस, टाटा मोटर, DVR। मैंने पोर्टफोलियो 100 करके बनाया था, जिसमें 10 स्टॉक थे, 100 के अंदर थे। वो पोर्टफोलियो अभी भी 20% ऑफ है। तो मैंने ऑलरेडी बोला कि इसको अगर इफ यू आर अ ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, बुक दैट 20%। बराबर है सर। अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए इफ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो यू शुड ऐड ऑन डिप्स। नहीं, अभी आपने जैसे बोला कि 7,500 भी ब्रेक हो सकता है ना सर। तो अभी एग्जिट करके अगर नहीं ऐसा नहीं है। आई एम लुकिंग पैनिक, पर डजंट मीन कि 7,500 के नीचे जाएगा। नो वन नोज मार्केट इज देयर सर। सर 7,500 से डबल बॉटम बना के ऊपर भी जा सकता है ना सर। दिस अ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अभी तक निफ्टी ने जितने भी बड़े मूव दिए हैं सर। जस्ट अ मिनट, आई एम गोइंग टू हाईलाइट यू व्हाट निफ्टी डिड इन इट्स लाइफ टाइम। शेयर स्क्रीन, ओके। निफ्टी ये मिटा देता हूँ सर। ओके, अभी देखिए निफ्टी एक बॉटम बनाया सर इधर। अभी अगर वो दूसरा बॉटम बनाता है तो इट विल लुक एज अ वेरी बुलिश पैटर्न, एज अ डबल बॉटम। क्योंकि अगर मैं निफ्टी का हिस्ट्री देखूं ना, तो जब भी निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया है वहां डबल बॉटम है, या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिया है, ऑलमोस्ट डबल टॉप है। अगेन मल्टीपल बॉटम और पुल बैक, अगेन डबल बॉटम और पुल बैक, अगेन डबल टॉप एंड क्रैश, अगेन डबल बॉटम एंड गुड पुल बैक। तो निफ्टी ने जब भी अच्छा मोमेंटम दिया है, डबल बॉटम डबल टॉप, वो अच्छा रिट्रेस करता है। डबल टॉप बॉटम, ये भी डबल बॉटम था, राइट सर? वन डिप पेंडिंग। हाँ, तो आई एम लुकिंग फॉर वन डिप। उसके नीचे जाएगा देन आई कैन लुक फॉर अ लेवल ऑफ लाइक 6500 6200, which is a WD gain suggested of 50% retracement of the all time peak, right? 12,400 का हाई, अगर उसका 50% गिनूं तो 6200 समथिंग आता है। That level can be seen in a bear market, right? But उसके लिए 7,500 तोड़ना जरूरी, अगेन डबल बॉटम। तो आई एम लुकिंग फॉर सच अ मूव टू ऐड इन पोर्टफोलियो लाइक एनीथिंग। Got it, sir? तो मुझे समझ गया सर। मार्केट वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी, नॉट ऑन गट फीलिंग, राइट सर? मेरे लिए अभी इसके नीचे जाएगा, देन दिस इज अ लेवल। उसके नीचे जाएगा, देन आई कैन गो फॉर दिस।
यहाँ से बाउंस लगाएगा, देन आई एम लुकिंग फॉर हायर लेवल्स आल्सो, राइट सर? राइट है। हाँ, वी आर वर्किंग ऑन प्रोबेबिलिटी, वी आर नॉट हैविंग कंफर्म सेटअप। हाँ सर, और अगर कोई बोल रहा है मेरे पास कंफर्म सेटअप है तो झूठ बोल रहा है या कुछ भी कर रहा है। Nobody has the confirmed setup of the market. Nobody knows where smart money is going to buy and where smart money is going to exit in the market. Right, sir? इन स्टॉक मार्केट भाव ही भगवान है, तो वो अर्ली प्रिडिक्शन करना, हाँ अर्ली प्रिडिक्शन करना आई थिंक वो कुछ गलत फहमी में रहना जैसा है। देखो सर, हमारा वी कैन रेडी विद द प्लान ए एंड प्लान बी। सर इसके नीचे जाएगा तो 7500 वुड बी द लेवल जहां मुझे कुछ एडिशन करना है। उसके नीचे जाएगा तो मैं रुक जाऊंगा सर, मुझे लगेगा फिर और बॉटम आ सकता है नीचे। बट इट सर, वी आर ऑन अ वर्किंग ऑन अ प्रोबेबिलिटी ऑफ द मार्केट, जहां से हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो। दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ परफेक्ट साइंस। बट अगर मैं वही ट्रेड ले रहा हूं जहां मेरा स्टॉप लॉस छोटा है, देन आई नीड टू बी सक्सेसफुल ओनली 50% ऑफ द टाइम। तो मेरा स्टॉप लॉस हर बार छोटा है सर। Got it, sir? Yes, sir. Thank you. Any other confusion? Any other query? Hello? No confusion, no query. तो कह रहे, हाँ बोलिए सर। सर जी अभी तो अकॉर्डिंग टू यू तो अभी हमको पी पोजीशन लेके रखना चाहिए जून का। हाँ पी, बट पी रखना चाहिए, बट आई एम नॉट लुकिंग। हाँ सर, टाइम डीके इतना हो रहा है, एटीआर इज गोइंग डाउन और मार्केट साइडवे चला जाता है। अभी समझ लो आपने 9000 का पी लिया, बराबर है सर? थर्सडे इज एक्सपायरी, समझ लो। एक बंदे ने कल मुझे पूछा, इसलिए एक बंदे के पास 8800 का पी है अभी थर्सडे का, ऑलमोस्ट 43 रुपीज, बराबर है सर? राइट सर। अभी तो देखो छुट्टी आई 2 दिन, तो भी 43 का तो ऑलरेडी डाउन हो जाएगा। मार्केट नीचे जाएगा, टाइम देखो होगा, और 8800 बहुत दूर है ना सर? राइट सर, 500 पॉइंट्स है, 450 पॉइंट्स दूर है सर। तो अगर इसको रिवॉर्ड देना है ना सर, तो मार्केट को जोरों से गिरना पड़ेगा, जोरों से। वो धीरे धीरे गिरेगा ना तो ये जीरो हो जाएगा सिर्फ एक्सपायरी तक। राइट सर, थर्सडे जीरो हो जाएगा। और मार्केट का एटीआर डाउन हो रहा है सर, तो वो होने के बहुत चांसेस है सर उसके। सर आपका एलओसी 9300 है, तो अगर ये 9300 क्रॉस हो जाता है ये वीक में, तो नेक्स्ट एलओसी कितना हो जाएगा? नहीं, अभी एलओसी चेंज हो जाएगा। अभी एलओसी है 9100। ओके, 9100। जब तक 9100 के ऊपर है बुलिश, 9100 के नीचे बेरिश, राइट सर? ओके, थैंक यू। 9100 फॉर अ पोजिशनल आल्सो, बराबर है सर? इंटरडे में तो काम करेगा ही, बराबर है? 9100 इन नेक्स्ट एलओसी फॉर अ नेक्स्ट वीक। कल अच्छा काम किया ना, 9300 पहले बाय दिया, फिर नीचे सेल दिया, तो इट रिवॉर्ड्स यू, बराबर? अगर आप टेक्निकल जानते हैं तो आप और अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। सर ये एलओसी कैश का है या फ्यूचर का है? एलओसी ऑलवेज स्पॉट, आई रेयरली सी फ्यूचर चार्ट्स। मैं स्पॉट के चार्ट ही देखता हूँ, विच गिव मी मोर क्लैरिटी। बट ट्रेड टू फ्यूचर में ही कर सकते हैं ना सर? सर 9100 जब ब्रेक हो जाएगा तो वी कैन सी 8800 इन द चार्ट। यस यस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा ना, वो आ जाएगा, बराबर सर? ओके सुहास भाई, मैंने पीवीआर में काम किया था। हेलो, आप बोलिए सर, वन बाय वन, नो वरी, रिलैक्स। ये लॉन्ग टर्म कॉल को बिक्री किया जा सकता है क्या? लॉन्ग टर्म कॉल को, कॉल ऑप्शन को लेना है आपको? नहीं, बिक्री अगर अपने इन पोर्टफोलियो को अगर हेज करना हो, हाँ, तो दिसंबर का कॉल अगर बिक्री कर दें। सर एक बात बोलूं, यू आर न्यू टू मार्केट? नो, आई एम जस्ट एन इन्वेस्टर। हाँ, अभी देखो सर, आप इन्वेस्टर हो और ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस कितना है सर? मैंने म्यूट किया है, आवाज बहुत आ रही थी इसलिए सर। हाँ, ट्रेडिंग नहीं करते अभी, हमारा इन्वेस्टमेंट का ही काम। मींस you are having less exposure to trading as of now? No trading exposure. हाँ सर, ऑप्शन है ना, ऑप्शन must be last option to trade. अच्छा, Got it sir?
Option must be last option to trade in the market. और option means आइसक्रीम है, आइसक्रीम। आइसक्रीम को ज्यादा पकड़ के रखेंगे ना सर, वो पिघल जाएगी। Option writers having very strong conviction, calculation, data, तब वो इतना ऑप्शन राइटिंग करते हैं सर। Don't go for this way, right sir? ओके ओके जी। क्योंकि ऑप्शन राइटर्स जो होते हैं, आप बेचेंगे, ऑप्शन राइट करेंगे, आपका प्रॉफिट लिमिटेड है बट लॉस अनलिमिटेड है सर, बराबर है? हाँ, बट स्टिल दिस रीजन, स्टिल राइटर्स आर राइट इन दिस मार्केट। तो सोचो उनका कन्विक्शन, एनालिसिस, डेटा कितना स्ट्रॉन्ग होता है सर। और यू आर न्यू टू मार्केट ना, ऑप्शन तो ग्रामर वो लास्ट में आएगा, पहले एबीसीडी क्लियर करनी पड़ेगी सर, बराबर ना? ओके ओके। तो जस्ट फर्स्ट गो फॉर प्राइस एक्शन, देन गो फॉर ऑप्शन। ओके ओके। व्हाट इज सर, आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट दिस, इसलिए बोल रहा हूँ सर। हाँ, ऑप्शन मस्ट बी लास्ट ऑप्शन टू ट्रेड। ओके ओके, थैंक यू। राइट सर। हाँ सुभाष भाई। हाँ बोलिए सर। मैंने पीवीआर शॉर्ट किया था कैश के हिसाब से 944 के लेवल पे, ठीक है, और मैंने काम किया था फ्यूचर में, और फ्यूचर में तब डिस्काउंट था 63 पॉइंट से, ठीक है। पीवीआर तो कंटिन्यूअसली नीचे ही आया, बट जो फ्यूचर में जो था ना, जो प्रीमियम, जो डिस्काउंट जो था वो धीरे धीरे बढ़ गया, वो 32 तक जीरो हो गया, ठीक है। तो जो मुझे प्रॉफिट बुकिंग मिलना चाहिए, ठीक है, वो नहीं मिला, और पूरा लॉस वो डिस्काउंट में ही चला गया। और ओवरऑल में ना 2-3 हजार रुपए से लॉस में आया, मैं प्रॉफिट में तो निकला ही नहीं, जबकि मेरा टेक्निकल एकदम सही था, और यहाँ पे मेरा गेम हो गया। यू आर राइट, आपका सब सही था, बट सेंटीमेंट, अभी देखो निफ्टी खुद प्रीमियम में होता है सर, है ना? हाँ, बैंक निफ्टी में भी ऐसा हुआ यस्टरडे। बैंक निफ्टी मैंने शॉर्ट किया, ठीक है, तो जब मैंने शॉर्ट किया ना तब वो डिस्काउंट में था, जब मैंने उसको निकाला ना तब वो प्रीमियम में निकला, तो मुझे 100 पॉइंट तो वैसे ही लॉस हो गए यार। अभी आप सोचो सर, यू आर ट्रेडिंग इन अ स्टॉक फ्यूचर और आपको लॉस जा रहा है, बराबर है सर? हाँ, ऑप्शन वालों की हालत क्या होगी सर इसमें? तो वही बोल रहा हूँ ना, इसीलिए ये जो बंदा जो ऑप्शन का पूछ रहा है, हाँ, तो वो आइसक्रीम ही है। तो देखो अभी पीवीआर हम फ्यूचर में काम कर रहे हैं, फ्यूचर में काम कर रहे हैं, 63 पॉइंट अपने जीरो हो गए, तो बंदे जो ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो उसका क्या हालत होता होगा यार? उनका तो कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो जाएगा उसका। हाँ, तो यू कैन चेक जो अभी देखो सर, निफ्टी देखो, निफ्टी का चार्ट में इसीलिए बार बार दिखा रहा हूँ, देयर इज नो सेंटीमेंट, दिख रहा है? देयर इज नो सेंटीमेंट एट ऑल सर। 200 गैप अप था। हाँ बोलिए सर। और पीवीआर है ना, बेस्ट एग्जांपल है क्रॉस चेक करने के लिए ऑप्शन वाले बंदों के लिए, क्योंकि वो गेम हो जाएगा। और अभी तो पीवीआर इज हैविंग वेरी बेड सेंटीमेंट बिकॉज़ मॉल्स बंद है, ये सब बंद है, तो वो तो नीचे जाएगा। हाँ वही, और टेक्निकली भी वो काफी स्ट्रांग है, वो नीचे जाने के लिए बहुत बैड सेगमेंट में ही वो है, और दैट्स व्हाई आई एम शॉर्टिंग द पीवीआर, ठीक है। बट एक्चुअली पोजीशन इज देयर, एंड सिनेरियो क्या हुआ वहां पे सुहास भाई, कि मैं शॉर्ट में बैठा भी, ठीक है, देख रहा हूँ कि प्राइस के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से पीवीआर नीचे आ रहा है, बट फ्यूचर आर स्टेबल, एंड वो जो 64-63 पॉइंट का जो प्रीमियम था वो पूरा खा गया यार, पूरा। हाँ। और ओवरऑल लॉस में आया। तो अभी करे तो क्या करे भी, क्या किससे पैसे मांगे इसके? You can't do anything sir. Sentiment of market is not in a favor, बराबर है सर? सर जैसा कि ये फ्यूचर टू डिस्काउंट एक्चुअल का एग्जांपल लेता हूँ मैं। हाँ। एक्चुअल में कल जब उसमें तेजी आई तो उसका जो कैश था वो 97 रुपीज बढ़ा, और जो फ्यूचर था वो सिर्फ 77 रुपीज, और आज भी फ्यूचर डिस्काउंटेड में है 31 रुपीज। हाँ। 1.5% है उसकी वैल्यू का। हाँ। तो इतने बड़े स्टॉक में जो 1.5% का डिस्काउंट, वही तो है सर। अभी देखो सर, मैं तो स्टॉक दिखता नहीं इतना, निफ्टी की बात करूं, निफ्टी कितने टाइम से सर प्रीमियम पे है, बराबर ना? निफ्टी इज ग्रेटर देन निफ्टी फ्यूचर most of the time since last 2.5 months, right sir? बिल्कुल सर, ये लो लगाने के बाद उसके बाद प्रीमियम पे जाए। It's a very unique sentiment of the market as of now, और इसलिए बोल रहा हूँ, don't go for positional trading yet in the market.
इंट्राडे बेस्ड है अगर आप सही तरह से ट्रेड पकड़ लेते हो तो सर, अदरवाइज आई एम नॉट लुकिंग एनी गुड मोमेंटम लाइक पीवीआर जैसा तो बार बार होगा सर। नहीं, मैं एक्चुअल में पोजीशनल में हूँ, तो इसके लिए मतलब इसका जो फ्यूचर का देख के मेरे को डाउट लग रहा था इसमें। कौन से स्टॉक में पोजीशनल में हो सर? हिंदुस्तान यूनिलीवर। सेल में हो बाय में हो? बाय में। हाँ, देन यू आर गुड। ये अच्छा पुलबैक का चांस है, मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किया है। मैंने वीकली एनालिसिस जो डाला ना यूएसडी आईएनआर का, अरे कल मैंने वीकली एनालिसिस जो डाला उसमें आई एम लुकिंग फॉर एफएमसीजी बुल, और मैंने रीजन भी बताया, एंड दिस द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल। और कल सुबह ही मैंने बाय दे दिया था सर, मेरे जो क्लाइंट्स ग्रुप है ना उसमें भी, तो ऑलरेडी वो लोग तो 2% 2.5% ऊपर ही है सर। सर मैं इसमें ब्लॉक डील से हूँ, नियरली 1910 1915 से। आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस मूव। हाँ, आई विल डिस्कस दिस मूव। हाँ बोलिए सर। एक्चुअल में फर्स्ट टारगेट 2200। सर आई एम लुकिंग फॉर न्यू हाई सून, अगेन वापस ऊपर जाएगा, राउंड कंप्लीट करेगा ऐसा वाला। ओह डेफिनेट। राइट सर। This expiry in this expiry? नो वो बहुत दूर है सर। इट्स अ गिवन फॉर अ पोजिशनल बाय, डोंट गो फॉर एफ एंड ओ। हाँ सर, नो फॉर कैश में अगर आपको पोर्टफोलियो में डालना है, शॉर्ट टर्म बाय करके रखना है, देन यू कैन गो फॉर एचयूएल, डोंट गो फॉर एफ एंड ओ। सर एफ एंड ओ नहीं है, कैश में लिया है। कैश में लिया था, डोंट वरी सर, यू आर ऑलरेडी हेडिंग गुड। मैंने खुद लिया है सर, बट मैंने एफ एंड ओ में नहीं लिया बिकॉज आई एम नॉट लुकिंग यू येट कि मैं एफ एंड ओ में पकड़ के बैठा रहा हूँ सर। नहीं सर, स्टॉक्स का एफ एंड ओ नहीं करता। हाँ, अभी मत करो सर एफ एंड ओ में काम, गो फॉर कैश। और अगर आप नए हो तो स्टे अवे फ्रॉम एफ एंड ओ, गो फॉर कैश। और यहाँ भी सर थोड़ा बहुत भी मिले, चलो 10-15% मिले, निकल जाओ इफ यू आर अ पोजिशनल ट्रेडर। 50% क्वांटिटी बुक कर देंगे सर 2200 पे। हाँ 2200 10% बहुत है सर। बराबर है सर, 10 दिन में 10% इज ओके, राइट सर, बट डोंट गो फॉर एफ एंड ओ। हाँ, आई एम नॉट सजेस्टिंग एज ऑफ नाउ फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग और एनीथिंग एनीवन इन एफ एंड ओ। करना हो सर इंट्राडे करो, अच्छा मोमेंटम मिले निकल जाओ, डोंट कैरी ओवरनाइट पोजीशन। 200 पॉइंट गैप अप होता है, 200 पॉइंट गैप डाउन होता है। आई एम नॉट लुकिंग पोजिशनल good technical to trade as of now. Risky job in the market as of now for anything. Okay friends. Thank you sir. Okay, can I close the day? Thank you. Right. Thank you sir. Good night friends. Thank you sir. Thank you.